बोलेंगे 50 साल के लिए हमको घर के लाइफ बनाना है, तो आप सोचिए हमारे सब डिसीजन चेंज हो जाएंगे. The quality of vendor we hire, the quality of material we use. As of now, we are number one real estate company of Central India in terms of turnover, in terms of employee, in terms of number of projects. So maintaining this and further growing is always a challenge. Do XYZ business. How do I learn ये business? मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्या क्या है? Is it according to you क्या quickest है? कोई mentor के पास जाना या online देखना या फिर कोई course करना? What do you think? I think it's all of the above. You have to sleep, drink, eat, walk, run, everything with your passion, with your objective. एंड मैं तो अपनी जर्नी में यही देखा कि इट वॉज मेरे को जब क्लैरिटी आई कि मुझे ये करना है, आई वॉज लिटरली ब्लाइंड फोल्डेड. आई वॉज लाइक दिस. अभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वॉज नॉट गुड यार. आई डिड बैड. आई वॉज नॉट अ बैलेंस मैन. सो एज यू सेड कि अगर किसी को नहीं आते तो आई वुड से डोंट वरी, जस्ट एंटर, जस्ट बी पैशनेट, जस्ट बी फोकस्ड, जस्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट. आई ऑलवेज से इट हेल्प्स मी अ लॉट, लाइक बिगिन विद द एंड इन माइंड. टू थिंग्स जिसमें आप इन्वेस्ट करो जो ऑलवेज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे, उसमें रिटर्न्स आएंगे. वन इज real estate, another is yourself. Welcome to today's episode of Real Estate Journeys. Our today's guest is Mr. Anand Singhania. Anand Singhania is the managing director of Avinash Group based out of Raipur, Chhattisgarh. He is also the vice president of Credai National. Under his leadership, the company has completed 59 projects of residential, commercial and retail covering to an impressive 2.2 crores of development. Join us as we explore the journey of Mr. Anand Singhania. Hi Anand sir, how are you? I'm good and feeling great to be here with you in your office in Pune. It's great to host you on my podcast here today. Thank you, I really hope that by today's podcast, what we can do is that just like your journey, what I've known, we can, help so many others without any background in any business or any industry. How can they learn, start, grow and scale a business? So that would be the objective of today's podcast. I would be very free and candid to with you and for all the viewers, because I believe in sharing, and I myself have learned a lot by sharing and meeting new people of the industry. So I would love to be very candid and open about it today. Absolutely. So sir, what we do is that to begin your journey and understand your journey better, we start from the beginning of it. So that is your childhood. Can you tell where were you born and brought up? So I was born and brought up in Raipur. Raipur छत्तीसगढ़ की राजधानी है आज की डेट में. But then it was part of MP, and my बचपन was very good. I was full of energy and full of मस्तीखोर child. So I think later on those energies may have channelized, and I could do whatever I could do. It's because of that energy and family values. So Raipur was a place where I was born and brought up, and Raipur एक छोटी सी जगह है, but लेकिन people are very good, and now eventually it has developed into a very big city. So now people who come to Raipur from outside like Mumbai, Delhi or Pune, Hyderabad, Bangalore, they are really surprised, stunned by the development going on. So I think from that perspective Raipur is doing great. That's nice. Can you tell me something about your education journey? So I did my schooling till 10th in Raipur, then 11th, 12th I went to Pilani for 11th, 12th, and then I stayed there in residential school. That was I think beginning of turning point of for me, जहाँ से थोड़ा ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ करना है. Ambition वहाँ से create हुए, desires और create हुए, और ambitious हुआ वहाँ से. Then after that I did my college. I did BE in civil engineering from Raipur only, and that's it. So were you always कि बचपन से मेरे को कुछ तो बनना है, मेरे को कुछ तो करना है? Did you always have that ambition? Yeah, I was ambitious child बचपन से ही. पहले मैं पायलट बनना चाहता था. तो फिर वंस कॉलेज में स्कूल में कुछ वो आई टेस्ट वगैरह होता है ना, कैंप लगते हैं. Then I came to know from the doctor that I am a colorblind. I have a color blindness, so that I cannot be a pilot. So they say कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते if you are a colorblind. Okay. So when they first told me कि I am a colorblind, I cannot be a pilot. So that was the one ambition. फिर eventually college days में I got more clarity that I want to be a real estate developer. अच्छा, क्या ऐसा हुआ? Is it just because of civil engineering? Why did you choose civil engineering? So I didn't choose civil engineering. Actually, I wanted to do mechanical engineering, to be frank. And I got admission in USA in 2-3 colleges.
तो वहाँ उस समय मेहनत करके 90s में तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन टू इवन नो हाउ टू गो देयर एंड माई पेरेंट्स वर टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली दे वर लाइक माई मॉम वर्कड अ लॉट ऑन मी रिगार्डिंग स्टडीज़ बट आगे क्या करना है वो उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था तो मेरा पता नहीं कहाँ से एम्बिशन डेवलप हुआ कि आई वॉन्ट टू गो टू US फॉर डूइंग इंजीनियरिंग एंड I got admission also. Then my grandfather said कि यार तू घर का सबसे बड़ा है and you should be here. And मैं उनकी बात बहुत मानता था and he's a very visionary person. He was a very visionary person. So फिर I decided to drop that and उस समय बहुत पास में फिर PET के एग्ज़ाम थे तो उसमें मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ. So by chance I got into civil engineering. ओके एंड वंस यू गॉट इनटू इट आपको उसमें और इंटरेस्ट आया? हाँ, तो सिविल इंजीनियरिंग करते करते आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. मतलब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा कॉमन सेंस है और डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है एंड आई वॉज अ पर्सन जो सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता था लाइक कॉलेज की सब एक्टिविटीज़ में भी फ्रेंड्स में भी व्हाट इज़ गोइंग अराउंड एंड मैं एवरी सैटरडे एंड एवरी समर हॉलीडेज आई यूज्ड टू गो टू बिजनेस ऑल्सो. मतलब वो मेरी एक आदत थी कि शुरू से ही मैं बिजनेस में इन्वॉल्व था. किस चीज़ का बिजनेस था आपका? उस समय हमारा डीलरशिप ऑफ मारुति था व्हेन आई वाज इन कॉलेज बट आई वाज डूइंग दिस सो कॉल्ड इंटर्नशिप फ्रॉम क्लास 5th एज आई ऑलवेज से. तो 5th में ही मुझे दादाजी ने एक बार नाराज़ होके देखा कि बहुत धूम मचा रहा हूँ मैं तो ही सेंड मी टू समर हॉलीडेज़ का समय था. बोले तुम शॉप में जाओ. हमारी शॉप थी उस समय तो आई स्टार्टेड गोइंग टू शॉप एंड फ्रॉम दैट डे टिल द लास्ट डे ऑफ माई कॉलेज आई हैव बीन डूइंग दैट इंटर्न एवरी सैटरडे एवरी समर हॉलीडे. तो आई थिंक वो एक फैक्टर था जो मुझे ये क्लैरिटी दे दिया कि यू शुड डू समथिंग इन बिजनेस एंड देन सिविल इंजीनियरिंग somehow helped me in getting a vision कि रियल स्टेट का बिजनेस हो सकता है विद सिविल इंजीनियरिंग कंबाइंड एंड विद बिजनेस इन DNA दिस कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन. तो जब व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस माई सिविल इंजीनियरिंग ड्यूरिंग कॉलेज डेज तो फिर वंस आई वेंट टू अपने ऑन माई ओन अपना इंटर्न वहाँ पे कोई एक बिल्डर थे रायपुर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे थे हाई राइज उन डेज में. तो उनके पास ऐसे ही चले गया समझने जब छुट्टियाँ थी तो कैसे होता है काम क्या होता है. तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया. सो दैट वाज अ फैक्टर आई थिंक कि विच मेड मी इन्वॉल्व एंड आई वाज लकी टू बी हैव क्लैरिटी सो सून कि यहाँ जाना है सिविल इंजीनियरिंग करना है. सिविल इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है एंड देन बिजनेस DNA में है तो दोनों कंबाइन करके कर रहे हैं. सो अगर मान लीजिए आपने जैसे सिविल इंजीनियरिंग किया नाउ इफ समवन डजंट कम फ्रॉम अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उनके लिए वो कैसे सीख सकते हैं इफ़ दे वांट टू एंटर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री? या आई वुड से देखिए नॉलेज हेल्प्स ऑलवेज. मतलब वो आपको इनर्शिया कम करता है नो डाउट अबाउट इट. बट आवर रियल एस्टेट बिजनेस मुझे ऐसा परसेप्शन था कि सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है बट बाद में आई रियलाइज कि इट वॉज ओनली 20% और 25% because all this civil engineering can be outsourced. Correct. The importance is कि how you structure your business, how you present your business and come out with your. अगर वैसी बात करें तो legal knowledge भी बहुत important है real estate में. But I was not a lawyer. Accountancy बहुत important है, how to understand cash flow management and how to have a clarity कि भाई शुरू में ही हमारा business model कैसे finance proof हो जाए and sustainable हो जाए. तो ये सब तो knowledge था ही नहीं. तो you need to have lot of things in doing real estate business. So it was only 20% of the thing which was civil engineering. तो वो मेरा perception था जो I later realized कि वो portion तो always outsource करना important है and a lot many other things have to be taken more care. तो I would say कि जो नया आपने जो question किया ना अश्विन कि जो इंजीनियरिंग नहीं करा उसके लिए कैसा है तो इक्वली बराबर है. any person who is entering he must be good in something. That good in something make your stronger point, that good thing और उसको स्ट्रॉन्ग करते चलें बाकी चीज़ों का आप लर्न कर लेंगे इस जर्नी में आई एम श्योर. ओके सो इट वुड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज मे बी जस्ट फोकस ऑन द वन थिंग जिसमें तुम ज़्यादा अच्छे हो देन ट्राइंग टू लर्न थोड़ा of absolutely everything. Yes, because if you're good in legality, let's say you have done a law thing, so it helps a lot in our business. Definitely. If you're good in marketing, sales, so you understand how important it is. मतलब इनफैक्ट सम सेल्स वेलोसिटी और सेल्स कैसे होगा पल्स ऑफ द मार्केट पे स्टक हो जाते हैं. तो इफ़ यू नो हाउ टू बिल्ड बट यू डोंट नो हाउ टू सेल देन हाउ यू आर गोइंग टू सक्सीड.
और या आप लीगलिटी का नॉलेज नहीं है आपको एंड आपने कोई गलत लैंड ले ली या गलत अप्रूवल्स ले लिए, सो यू आर स्टक. सो दिस जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ डिफिकल्ट, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग इफ यू आर रियली passionate or if you really want to do something in real estate. So as you said कि अगर किसी को नहीं आता तो I would say don't worry, just enter, just be passionate, just be focused, just be clear what you want. I always say it helps me a lot, like begin with the end in mind. तो somehow मुझे कॉलेज डेज में ये क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे बिल्डर बनना है. एक ऑफिस में पापा के साथ गया था, अंसल्स का ऑफिस था दिल्ली में. उनका पापा का कुछ ट्रांजेक्शन था तो आई हैपन टू बी विथ हिम. थोड़ा इंटरेस्टेड रहता था तो फादर भी लेके जाते थे. तो जब वो मैं देखा उनका ऑफिस, ही वॉज वेरी फेमस दैट टाइम इन 90s. अंसल्स इन दिल्ली वॉज लाइक अंसल प्लाजा एंड वेरी बिग बिल्डर देयर, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वर देयर. तो जब उनका वो ऑरा और उनकी वर्किंग स्टाइल देखी तो यार दिस कैन बी डन इन रायपुर. आई बीइंग अ सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे वो बिगिन विद द एंड इन माइंड क्लियर हो गया था. मुझे अपनी ये जर्नी दिखने लगी थी कि यार ऐसा हो सकता है, इतना स्केलेबल हो सकता है. तो आई थिंक इफ़ यू रियली आर इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट समथिंग यू वांट टू डू, आपको अपने आप चीज़ें वो शिद्दत क्या कयानत वाला जो है ना शाहरुख खान का, कयानत अपने आप आपको सब चीज़ों से जोड़ देती है, मिला देती है. यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग एंड पिक अप थिंग्स विच यू लाइक. सो अगर किसी को, इफ समवन इज देयर विदाउट एनी बैकग्राउंड इन एनी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट रियल एस्टेट, what according to you is the best way उसके लिए सीखने के लिए? How can he learn quicker? So देखिए, सबसे पहले तो ये उसको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस लाइन पे जाना है ना. ये जनरली सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है आज की डेट में कि पीपल डोंट नो व्हाट वेयर दे वांट टू गो. आदमी ये आइडेंटिफाई कर लेता है मुझे बिजनेस करना है. देखिए, बिजनेस इज़ वेरी जेनरिक थिंग ना. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और ये क्लैरिटी अगर आपके दिल से अगर जुड़ी हो है ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट. जिसको हम पर्पस बोलते हैं कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. समटाइम इफ यू रियली टेक केयर ऑफ योर इनर वॉइसेस है ना, एज ए यंग मैन यू कैन बी वेरी क्लियर कि मेरे को इस लाइन पे काम करना है. इट कैन बी एनीथिंग. तो बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा पर्पस के साथ कनेक्ट कर लें, अपने हमारा दिल क्या चाहता है ऐसे कनेक्ट कर लें, एंड देन इफ यू कंबाइन इट विथ योर स्किल सेट, इवन इफ द स्किल सेट इज नॉट देयर, इट कैन बी डेवलप्ड. बट इम्पॉर्टेंस इज कि आपके पर्पस से कनेक्ट हो जाए और आपका पैशन उसमें रहे एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग. सो एजुकेशन वोंट मैटर, बैकग्राउंड वोंट मैटर. या जर्नी कैन बी स्मॉलर और बिगर और लेंदियर, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट दैट जर्नी विल बी ब्यूटिफुल. अब मान लीजिए आई हैव अ पर्पस, मेरा पर्पस क्लियर है, आई वांट टू डू XYZ बिजनेस. हाउ डू आई लर्न ये बिजनेस? मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्या क्या है? इज इट अकॉर्डिंग टू यू क्या क्विकेस्ट है? कोई मेंटर के पास जाना या ऑनलाइन देखना या फिर कोई कोर्स करना? व्हाट डू यू थिंक? सो आई थिंक इट्स ऑल ऑफ द अबव. यू हैव टू स्लीप, ड्रिंक, ईट, वॉक, रन, एवरीथिंग विथ योर पैशन, विथ योर ऑब्जेक्टिव. एंड मैं तो अपनी जर्नी में यही देखा कि इट वॉज, मेरे को जब क्लैरिटी आई कि मुझे ये करना है तो आई वॉज लिटरली ब्लाइंड फोल्डेड. आई वॉज लाइक दिस. मतलब अभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज नॉट गुड यार. आई डिड बैड. आई वाज नॉट अ बैलेंस्ड मैन. और एज ए यंग बॉय आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क एंड आई वाज सो क्लियर. बट इसके प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं अगर रियली इफ़ यू आर पैशनेट. एंड ऑफकोर्स आप सोशली थोड़ा सा डिसकनेक्टेड हो जाते हो कई बार, या आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ इफेक्ट करती है. बट अगर आपको नहीं भी मालूम है कि कैसे करना है, तो आपको हर चीज़ में, चाहे आपके जैसे लाइक आई जॉइंड माई बिल्डर एसोसिएशन वेरी सून. जैसे ही मैं बिजनेस में एंटर किया तो मुझे क्लियर था कि यार मुझे आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. हमारी फैमिली में तो रियल एस्टेट बिजनेस था नहीं, तो आई हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. तो वेयर टू लर्न फ्रॉम? बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ टू जॉइन अ बिल्डर एसोसिएशन. उस समय जो बिल्डर एसोसिएशन था मैंने उसे ज्वाइन किया एंड उससे काफ़ी लर्निंग मुझे मिली. Then all the article related to it, like even Vastu, if you have knowledge of your industry, it helps. Everything helps. My engineering helped me in my case, but for a raw person, if he's not an engineer, if he's a good salesman, if he's a good marketing oriented person, if he knows the pulse of the market, he can get it created. Hire the best people in the industry. मतलब आप जब अगर आपको नहीं भी आता है कुछ, तो आप hire the best people in the industry, whatever line you are in, and you have to just connect the dots.
ओके. आपको ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि यार ये प्रोजेक्ट बनेगा क्या, ये यहाँ पे बिकेगा क्या. दैट ओनरशिप ऑफ द डिसीजन शुड बी योर्स. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वो आपको आएगा सम एक्सपीरियंस से. सो इफ़ यू आर रियली रॉ तो यू कैन वर्क विथ सम कंपनी और यू कैन स्टार्ट स्मॉल. कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आपके पास तो फैमिली बिजनेस था, तो आपके पास तो फंड आपके फादर ने दे दिया था, आपने कर लिया. मतलब दैट्स राइट. फादर की 2 एकड़ लैंड थी एंड उसी कारण हम कर पाए. और उन्होंने इनिशियल कैपिटल भी शायद 10-12 लाख रुपए था, वो भी दिया. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. बट कई बार अगर आपके पास ये भी नहीं है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू आस्क दैट, देन आई वुड से real estate is the most easiest business to enter. Without zero capital, you can enter this business. आप भी रियल एस्टेट में आप समझ सकते हो कि एज ए रियल्टर, एज ए चैनल पार्टनर, एज ए पार्ट ऑफ अ चैनल पार्टनर टीम, एज ए टीम लीडर, यू कैन एंटर इट. यू कैन अंडरस्टैंड द फ्रंट एंड ऑफ द रियल एस्टेट कि कैसे हम स्टॉक हमारा सेल करते हैं, लाइक व्हाट आर द इंटीग्रिटीज इन्वॉल्व, व्हाट आर द क्वेश्चंस इन्वॉल्व, कौन सा सेल प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है. सो इफ़ यू वर्क देयर एज ए जस्ट अ टीम मेंबर ओनली, you can eventually lead the team and become yourself a channel partner and become yourself an entrepreneur. So that journey can start from there without any capital. Your capital is yourself. तो बस उसमें थोड़ा आपका फिर अगेन यू नीड समथिंग टू स्टार्ट. उतना प्रेजेंटेशन स्किल आपका रहना चाहिए, उतनी लर्निंग रहनी चाहिए. सो आई वुड से रियल एस्टेट इज द मोस्ट ईजी बिजनेस टू एंटर इनटू विथ मिनिमम कैपिटल. एंड यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर. We have seen a lot of developers in India who were earlier a channel partner or who was just a small time broker. Yeah. And they turned their company into a real estate company, the biggest real estate companies of India. Wow. Sir, you were talking about purpose. So purpose, आपने बोला आपका purpose पहले clear था. So when you were starting, at what age did you start? I joined business at 23. Okay. And then real estate I started in 24. Okay, so just at the age of 24. Yeah. So at such a young age, what was the vision that you had? Did you expect कि अविनाश इतना बड़ा रहेगा जितना आज है? I would not say कि that was clear. I was a person of one goal at a time types. Okay. तो उस समय मैं जब स्टार्ट किया था, my only objective was just to know the intricacies of the business, to create the presence of Avinash Group, and to be just successful in one project, the project in hand. तो मुझे ये मालूम था कि अगर हम एक काम अच्छे से कर लेंगे तो आगे तो हम सुधरते ही जाएंगे. एंड मैं ऑलवेज एक चीज़ पे बिलीव किया, मुझे लगता है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू आई हैड फ्रॉम द बिगनिंग, जो आज भी उस कोर वैल्यू को फॉलो करता हूँ. बट दैट हेल्प मी अ लॉट दैट इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू अर्न. तो मैंने जब ये जो भी कैलकुलेशन होती थी सेल्स की या कंस्ट्रक्शन की, मुझे लगता था यार बस नुकसान नहीं होना चाहिए, घर में जस्टिफिकेशन देना है, बैलेंस शीट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हम कम प्रॉफिट कर लें, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और सेल हो जाना चाहिए. तो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सम गुड थिंग जिसके कारण हम एक बार सेट हैं और एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो. ब्रांड आइडेंटिटी तो बात की बात है. सो दैट वाज द फर्स्ट गोल. सो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही अविनाश का ही नाम था? या आई वाज लकी. आई वुड से अविनाश मेरे छोटे ब्रदर का नाम है. ही इज़ वेरी लकी फॉर मी एंड फॉर द एंटायर फैमिली. तो पहले प्रोजेक्ट में जो फादर की जो लैंड थी वो अविनाश बिल्डर्स के नाम पे थी. तो पापा बड़े एंटरप्राइजिंग है हमारे, मतलब वो बहुत विजनरी आदमी है. अगेन उनका डीएनए मेरे में है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, जिसके कारण काम कर लिया. तो वो उनके दिमाग में कहीं से रहा होगा कि इनफैक्ट उन्होंने 1973 में कोई एक प्रोजेक्ट किया था, सब 1973-75 में, जब उन्होंने खुद एक कोई वन टाइम प्रोजेक्ट उस समय किया था. लैंड का प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बट वो वन टाइम प्रोजेक्ट था, फिर वो बंद हो गया था. तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि कुछ करना है. तो ज़मीन खरीदे. तो उस समय अविनाश वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो उन्होंने वो ज़मीन उसके नाम से ले ली कि इसके नाम से हम बनाते हैं, कुछ काम बाद में करना हो तो करेंगे. तो सब थिंग में जो बोलते हैं ना कि डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा था. और लैंड अविनाश के नाम भी थी, पापा ने लिया हुआ था, और वो लैंड पे काम स्टार्ट करने का मौका मिला, तो वहीं से नाम अविनाश का हो गया. सो तब से यू केप्ट द नेम अविनाश? यस. सो
उस टाइम पे तो ब्रांडिंग करके तो इतना कुछ कंसेप्ट था नहीं, या फिर होता भी था तो इट वाज नॉट वेरी वेल नोन कि ब्रांड्स रियल एस्टेट में भी बनेंगे ऐसा। तो आपको तभी भी आपने सोचा था कि इसका ऐसे ब्रांड बनाऊंगा, यही नाम से आगे करना है, या हाँ, हर नहीं। प्रोजेक्ट में तभी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्डर्स हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग नाम चेंज करते थे, कभी कभी कुछ भगवानों के नाम या ऐसे कुछ। नहीं, यूर राइट। तो हम लोग के उस समय बिजनेस फैमिली जो थी, मारुति ऑटोमोबाइल्स हमारा बिजनेस था, मेन पेरेंट फैमिली का। तो सेम क्वेश्चन आया कि ये पहला प्रोजेक्ट है अविनाश बिल्डर्स का, कैसे क्रिएट होगा, आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी, पीपल हाउ दे वुड बी हैविंग ट्रस्ट ऑन दिस। तो हमने तय किया कि मारुति विहार नाम रखेंगे प्रोजेक्ट का, क्योंकि मारुति ऑटोमोबाइल्स है तो पीपल विल इजीली कनेक्ट विद इट। सो हमारे मारुति विहार के नाम से पहला प्रोजेक्ट था, एंड देन इट गॉट सक्सेसफुल इंसिडेंटली। आई वॉज लकी, वी वर ऑल लकी। तो उसके बाद में फिर हमने 10 साल तक मारुति के नाम से ही प्रोजेक्ट रखे, एंड देन आफ्टर 10 years व्हेन द कंपनी established एंड वी वर वेरी क्लियर कि नाउ अविनाश इज द ब्रांड नेम वी कैन थिंक ऑफ, सो देन वी चेंज टू अविनाश प्रीफिक्स। तो उसके बाद से फिर हमारे जो 49 प्रोजेक्ट्स आए वो अविनाश के प्रीफिक्स के साथ में आए। वाओ सर, बिफोर यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, आई डोंट नो ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आज डू यू थिंक अ बिजनेस प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट? कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले अगर यस तो फिर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का एक प्लान रहना चाहिए? ऑल्दो अ प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट फिर भी एक बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस? देखिए, प्लान तो ऑलवेज रिक्वायर्ड है, कुछ भी आप करें, चाहे बिजनेस प्लान करें चाहे हॉलीडे प्लान करें, तो प्लान इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट प्लान के पहले आपको ये एक अंदर से बिलीफ, सेल्फ बिलीफ रहना इम्पॉर्टेंट है कि ये सही है काम, है ना, या आई कैन डू इट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना बिजनेस में हम लोग चैलेंजेस फेस करते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग सेल्फ बिलीफ, या फिर गलत डिसीजन। इन द बिगनिंग वी टेक सम टाइम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आई वुड से कि प्लान हम डेफिनेटली एक बिजनेस प्लान पूरा बनाना हमको चाहिए, बट सबसे पहले आप ये बिजनेस में ये क्लैरिटी रख लो कि दिस प्रोडक्ट या दिस बिजनेस ऑन दिस लैंड ऑन वो वर्केबल है कि नहीं। तो वो अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो बाकी सब प्लान बन जाते हैं। तो वो उस पर रिसर्च हमको ज़्यादा करना चाहिए, उस पर हमको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, अबाउट द प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू मेक, whatever business it is, कि this product is acceptable in the market or not, and if it is acceptable at what price, is it working for me or not। तो उस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बाकी तो फिर प्लान, बिजनेस प्लान बन जाता है कि कैपिटल कैसे गेन करेंगे, एग्जीक्यूशन प्लान कैसा रहेगा, एवरीथिंग इज डन। बट अगर हम एक बार इस पर मिस्टेक कर दें तो आई थिंक दैट इज़ नो लुकिंग बैक। तो शुरू में आपको प्रोडक्ट का स्टडी और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका पल्स ऑफ द मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके पहले कोई भी इंडस्ट्री में कुछ एंटर करना है, मान लो रियल एस्टेट हो, FMCG हो, कुछ भी, और क्या क्या चीज़ें शुड आई एनालाइज इन दैट इंडस्ट्री? सो एक तो मैंने वही कहा कि सबसे पहले आप मार्केट स्टडी, क्लैरिटी रहे कि मार्केट में कितनी डिमांड है, पल्स ऑफ द मार्केट है कि नहीं आपके पास। उसके लिए आप खुद सेल्फ रिसर्च करें, कोई हायर करें किसी को, तो सबसे पहले वो रिक्वायर्ड है। देन कितना गैप है मार्केट में, मार्केट की डिमांड कितनी है और अभी आज का समय में गैप कितना है, और कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे, हु इज़ योर कॉम्पिटिटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कॉम्पिटिटर से आपको एक ये क्लैरिटी आ जाएगी कि वो जो सर्व कर रहा है और सर्विस एक्सपेक्टेशन कितनी है। आई थिंक जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे ओयो देख लें या जोमेटो देख लें, वो सिर्फ इस गैप से आए। लॉट ऑफ ओल्ड प्लेयर्स वर देयर, but they clearly knew that there is a gap in demand and supply, the kind of services which is expected and the supply was there। तो सेकेंड चीज़ ये हो गई कि आपको मार्केट का कॉम्पिटिटर मालूम पड़ जाए। देन नोइंग योर कस्टमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कई बार यही नहीं मालूम होता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको सेगमेंट की क्लैरिटी नहीं रहती है। तो व्हेन यू नो योर कस्टमर, यू नो लाइक कि मार्केटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सर्विस का लेवल किस लेवल का होना चाहिए, टीम सिलेक्शन उस पर डिपेंड होता है कि आपका टीम सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। तो नोइंग योर कस्टमर, नोइंग योर कॉम्पिटिटर, नोइंग द पल्स ऑफ द मार्केट। देन फोर्थ इज आपका फाइनेंशियल क्लोजर की कैपेसिटी है कि नहीं। हम अक्सर यहाँ पे अटक जाते हैं कि हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है, डे वन में वी नीड टू हैव अ फाइनेंशियल क्लोजर। अगर डे वन में आपका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं है, देखी जाएगी वाले मोड में है, तो देन इट इज़ रिस्की। यू हैव टू थिंक फॉर कोलैबोरेशन देन। तो दैट इज़, अपने आप ये चीज़ें आपको क्लैरिटी आती जाएगी।
तो आई थिंक दिस 4-5 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मार्केटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट और सेल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई थिंक अगर हमारे ये बेसिक 5 क्लियर होते हैं ना, तो मार्केटिंग एंड सेल्स कैन बी डन वेरी इजीली. मतलब अपने आप हो जाएगा, राइट. सो आजकल द जेन जी वो लोग बोलते हैं कि वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज इट्स इफ आउट ऑफ पैशन. अगर वो हमारा पैशन नहीं है तो हमें नहीं करना है. What do you think about it? कि should one focus on market gaps? Should one focus on personal passion? या फिर just financial freedom? मैं जनरली इसका आंसर ना इकिगाई बुक आपने पढ़ी है? तो इकिगाई बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. तो आई कैन रिलेट माई आंसर विद दैट बुक थ्योरी. उसमें ये कहा गया है कि आपका स्किल, आपका पैशन और मार्केट डिमांड, ये तीनों अगर मैच हो जाए. लेट्स से आई एम गुड इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एंड माई पैशन इज टू क्रिएट बिल्डिंग्स, है ना, एंड देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट फॉर द बिल्डिंग्स, गुड क्वालिटी बिल्डिंग्स. सो माई पैशन, माई स्किल एंड मार्केट डिमांड तीनों मैच कर रहा है आपका. सो इट वुड क्रिएट बिगर इम्पैक्ट इन लाइफ. तो जो आपने कहा ना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों आप मैच कर पाते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा है. सपोज इन तीनों में आप कोई एक चीज़ मैच नहीं कर पाते हैं, दो भी करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केस में होता है, तो देन थर्ड थिंग कैन बी डेवलप्ड. लाइक वी आर पैशन एंड देयर इज अ मार्केट गैप, तो दैट स्किल कैन बी डेवलप्ड, दैट कैन बी लर्नड, दैट कैन बी आउटसोर्स्ड. है ना, आप समझ रहे हैं? तो दिस इज स्किल कैन बी डेवलप्ड, आई ऑलवेज से. पैशन अगर रहे ना, तो आपको पैशन एंड मार्केट गैप रहे तो आपको स्किल डेवलप करने में मुश्किल नहीं है. इन तीनों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लग रहा है? आई वुड से पैशन, बिकॉज पैशन आपको रास्ता दिखा देगा, है ना. स्किल नहीं है तो स्किल दिखा देगा. मार्केट गैप अगर नहीं दिख रहा है आपको और आपका पैशन है, तो आप कोई ना कोई चीज़ आप क्रिएट ऐसी कर लो, अंदर से होगा कि नो आई वांट टू लर्न मोर, ये मेरे को नहीं आता है. हाँ, स्किल तो आप वैसा कर लेंगे कि जो मुझे नहीं आता है, स्किल आप पैशन के कारण सीख सकेंगे. एंड मार्केट गैप्स में क्या होगा, सपोज मार्केट गैप भी सपोर्टिव नहीं है, तो नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना आप. तो आप कुछ मार्केट में ऐसी चीज क्रिएट कर लेंगे जो ब्लू ओशन थ्योरी है, कि आप ऐसा कुछ मार्केट, ऐसा कुछ चीज क्रिएट करें जिसका कोई कंपटीशन नहीं है. सो दैट विल हेल्प यू टू टेक यू वेर एवर यू कैन. बोलते ना, आइडिया इज द थिंग विच कैन क्रिएट वंडर्स. सो आई थिंक आई वुड से कि पैशन इज द थिंग विच कैन रियली क्रिएट वंडर्स एंड विच कैन टेक यू वेयर यू वांट टू गो. यू कैन फ्लाई लिटरली. So now sir, I would like to go to when you started your business. तो जब आपने अविनाश ग्रुप स्टार्ट किया था, so first few months how did they look like? नहीं, इसमें थोड़ा सा ये था. तो एज आई लेफ्ट माई कॉलेज, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, दैट वाज अक्टूबर 95. सो आई वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड टू जॉइन अवर डीलरशिप ऑफ मारुति. वहाँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट था. सो दे थॉट कि घर से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आ रहा है, ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक इट अहेड. मारुति में क्या होता है, मारुति सुजुकी उस लिमिटेड जो है जापानीज कंपनी है, सो उनकी फिलॉसफीज, उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी टीम से कोऑर्डिनेट करना एंड गेटिंग देयर विजन डन, गेटिंग देयर थिंग्स इम्प्लीमेंटेड, वो काम था कुछ. तो मैं ज्वाइन कर लिया. मुझे मारुति का तो मैं बताया था आपको, हर समर में जाता था, एवरी सैटरडे जाता था, तो प्रीटी गुड आइडिया था और मेरा इंटरेस्ट भी आता था उस बिजनेस में. अच्छा, मतलब आई वाज लाइक बिजनेस में एक था ना कि इन जनरल आई हैड अ बिजनेस सेंस एंड आई यूज्ड टू एंजॉय. तो जब मुझे ये असाइनमेंट दिया गया, उस समय हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो आई जॉइंड इट कि भाई ठीक है, कर लेते हैं एक बार, इतना असाइनमेंट बड़े बोल रहे हैं, करना है. तो वो करते करते मुझे मज़ा आने लगा लिटरली, एंड वी गॉट अ गुड सक्सेस इन दैट फर्स्ट असाइनमेंट. Everyone liked the thing, the assignment, the project, and Belgium से कोई auditor आने वाला था to check that thing. तो he was very happy to see young boy. हर आदमी young boy को encourage करता है कि if he is trying to do something good. तो I got encouragement from, I was lucky to get encouragement from everyone. तो वो करते करते मुझे उसमें मज़ा आने लगा मारुति के बिजनेस में. सो अचानक वन फाइन डे आई रियलाइज़ कि यार मैं तो कुछ और सोचा था अपने लिए. कॉलेज डेज में मेरा डिसाइडेड था रियल एस्टेट कंपनी करना है. तो इस बीच में माई अंकल, वही जो लैंड थी, फादर वाली जो लैंड थी, उस पर कुछ सोच रहे थे कुछ कर लेते हैं, कुछ मकान स्टार्ट कर लेते हैं. बट ही वॉज नॉट वेरी क्लियरिटी बहुत उनको थी नहीं.
तो जब मैं बोला कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें करने का, तो वही बोला कनेक्टिंग द डॉट, भगवान जो है ना सब चीज़ क्रिएट करके रखता है आपको। तो इट वाज लाइक प्लेटर में प्लान था कि 2 एकड़ लैंड पापा की ली हुई थी, अंकल ने उस पर एक स्टार्ट करने का सोचा ही था, और कुछ कुछ उसमें एक्टिविटी प्लान वगैरह की थी, और आई सेड कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से बोला, यार आनंद तू देख, मेरे तो बस का नहीं है टाइप से, है ना, क्योंकि ये उनको लगा कि यार यही करे ज़्यादा अच्छा है, मैं कहाँ इसमें घुसूँगा। सो दैट वाज द स्टार्ट एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। मैं जब ये सोचा कि मेरे को ही करना है ये काम, आई वॉन्ट टू लिव मारुति बिजनेस, दैट वॉज 1 अप्रैल 1997। आई ऑलवेज से इट वॉज अप्रैल फुल्स डे। तो अप्रैल फुल डे था वो, और उस दिन मैं बोला कि आज से मैं सिर्फ अविनाश ये काम देखूंगा, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि मारुति का बिजनेस बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस था, मतलब ग्लैमरस बिजनेस था। उस जमाने में पीपल वर इन क्यू टू टेक द कार्स, बहुत लंबी क्यू और वेटिंग रहती थी। तो इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस छोड़ के इसको सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस बोलते थे, ठेकेदारी का बिजनेस समझते थे। रियल एस्टेट इतना ग्लैमरस या इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस नहीं होता था, मार्केटिंग होती नहीं थी, सेल्स बाय रेफरेंस होता था, ज़्यादातर छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे। और तो दैट वाज अ टफ डिसीजन, बट वो 1 अप्रैल 1997 जब मैंने लिया, तो फिर कोई भी क्वेश्चन अबाउट मारुति आया, आई सेड कि नहीं भाई मैं नहीं देख रहा हूँ। वो बोलते हैं क्या, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। मैंने 10-20 लोगों को जो क्लोज थे उन सब लोगों को बोला कि भाई आज से मैं मारुति नहीं देख रहा हूँ, मैंने ये स्टार्ट किया। द पॉइंट वॉज कि मैं अपने साथ अपना कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना चाह रहा था। तो आप अगर 10-20 लोगों को बोल दिया कि भाई अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि यार अब तो ये तो बड़ा बोल रहा था कि मारुति छोड़ के अब मैं ये देख रहा हूँ बिजनेस क्या हुआ उसका। तो टू मेक माई सेल्फ अकाउंटेबल आई प्लेड दैट थिंग कि 20 लोगों को बोल दिया कि आज से देखूंगा नहीं। सो दैट वॉज द स्टार्ट। फिर फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो जस्ट एक फोकस था कि आई हैव टू प्रूव कि नहीं यार मेरे कमिटमेंट को मेरे को प्रूव करना है, और मेरे को अपनी ड्रिफ्ट नहीं होना है टुवर्ड्स मारुति। सो आई वर्कड ऑन एवरीथिंग, लाइक इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जैसे करते हैं हम। घर खुद का कैसे बसाते हैं। हाँ। शुरू में पहले हमारे पास फर्नीचर नहीं होता है, हमारे पास कर्टन्स नहीं होते हैं, फिर टीवी नहीं होती है ना। शुरू में तो सिर्फ बेसिक एक रहता है। तो हमारे पास बस 3 लोग थे, एक अकाउंटेंट था, एक साइट सुपरवाइज़र था, एंड एक इंजीनियर था, और 4th मैं था। तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ सब चीज़, ये तीनों के अलावा ये तीनों में से भी कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता था सब चीज़। तो शुरू के 4-5 महीने बहुत इसी एक्साइटमेंट में कि कौन क्या देखेगा, क्या बना है, सब चीज़ राइट है कि नहीं। अप्रूवल्स, मुझे ABCD आइडिया नहीं था लाइजनिंग का, तो कभी किया ही नहीं मारुति में। तो जो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था वो इतना रिच एक्सपीरियंस था कि आप टेबल पे बैठे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, यू हैव टू जस्ट रन थ्रू द प्रोसेस। तो वो शुरू के 4-5 महीने बड़े स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वाले थे, बट इंटरेस्टिंग इसलिए थे क्योंकि एवरी डे वॉज अ न्यू लर्निंग, एवरी डे, फ्रॉम लाइजन टू हाउ द रजिस्ट्रेशन वर्क्स। रजिस्ट्री किससे होती मुझे नहीं मालूम था। कस्टमर ने पूछा, जब पहला कस्टमर था उसने पूछा कि इसमें रजिस्ट्री चार्जेस इंक्लूडेड है, मुझे मालूम नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया ओवर कॉन्फिडेंस में। फिर मैं समझा जाके कि व्हाट इज़ रजिस्ट्री, कितनी कॉस्ट परसेंटेज होती है, एंड इसका मतलब क्या होता है, एंड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सब बोलते हैं स्विमिंग पूल में जैसे हम उतरे तब तक स्विमिंग नहीं सीखते, तो वैसी जर्नी थी ये। तो एवरी डे वॉज अ लर्निंग डे, एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। वाओ। तो आपने जैसे बोला यू वर ओनली 4 पीपल टीम, उसके बाद में हाउ डिड यू हायर एंड फाइंड द राइट पीपल टू वर्क फॉर यू इनिशियली? सो सबसे पहले तो हम सिर्फ 11 मकान से हमने स्टार्ट किया था। तो ये 11 मकान में ये लोग सफिशिएंट थे, मोर देन इनफ थे, और ये 11 मकान सक्सेस होते दिख रहे थे। एंड मुझे ये क्लैरिटी थी, मैंने ऐसा आपको बताया अंसल्स का एग्जांपल, कि हाउ दिस बिजनेस कैन, वेयर दिस बिजनेस कैन रीच टू। तो आई न्यू कि अगर ये 11 मैं अच्छे से कर लूँगा और सेल कर लूँगा, तो हमारे पास लैंड और थी वहाँ पे, लैंड हम और ले भी लेंगे, अगल बगल में भी लैंड खाली थी, हम लेते जाएंगे और करते जाएंगे। तो वो वैसे ही हुआ कि वी वांटेड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट। तो वो थॉट क्लियर था जो मैंने बोला आपको, कि उस समय गोल एक ही था कि हमको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, एक कंपनी बिल्ड करना है। प्रोजेक्ट तो और प्रोजेक्ट बनने हैं, हमको यहाँ रुकना नहीं है। दैट वाज वेरी वेरी क्लियर। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता था हर डिसीजन लेने में। ये क्लैरिटी थी कि हमको एक एंटरप्राइज क्रिएट करना है, एक प्रोजेक्ट नहीं। नहीं तो इस कारण जो मैन पावर पहले 11 मकान के लिए हो गए, फिर ये 11 से 111 का वो नहीं मालूम पड़ा। इट टुक 4-5 ईयर्स,
बट हम 111 मकान सेम लोकेशन में बनाया हमने, वहीं पे फिर खरीदते गए लैंड, वहीं के अर्निंग से, वहीं के रेवेन्यूज से, और वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होता रहा. आई एम ग्रेटफुल टू माई प्रोफेसर्स. ये जो लैंड थी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के से बहुत पास में थी, तो प्रोफेसर्स का एंडोर्समेंट था मेरे साथ, उनका सपोर्ट था. वो बोले आनंद बना रहा है, आनंद सिंघानिया बना रहा है, सिंघानिया फैमिली इज़ नोन, बिजनेस में अच्छा नाम है, और आनंद को भी जानते हैं एज ए इंडिविजुअल, तो उनको कॉन्फिडेंस था. तो वो 4-5 मकान उन्होंने शुरू में ले लिए. तो वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वी कुड मेक 111 हाउसेज इन दैट प्रोजेक्ट. सो जो आपने बोला कि टीम कैसे बनाते हैं, तो सेकेंड प्रोजेक्ट ऑनवर्ड्स हमने फिर टीम को उसके हिसाब से बढ़ाया. और आई वॉज क्लियर एज ए इंजीनियर की यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद गुड पीपल. तो कंसल्टेंट भी थे, मैं अपने से जो बेस्ट कंसल्टेंट अवेलेबल होते उनको देखता था. एंड हर स्टेज पे मैंने मेंटरिंग को बहुत महत्व दिया. हर बार मेरा एक रहता था कि यार दिस इज़ द पर्सन आई शुड लुक फॉर, है ना, जैसे एज ए रियल एस्टेट डेवलपर. सो हु वाज योर फर्स्ट मेंटर? सो फर्स्ट मेंटर वाज माय कॉलेज कॉलेज, मतलब कॉलेज में पास आउट थे जो सीनियर थे मेरे से 4 साल सीनियर थे. तो मुझे उसमें सब चीज़ टिक 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 लगती थी. ही इज़ अ इंजीनियर, ही इज़ अ बिल्डर, ही इज़ डूइंग रियल स्टेट इन आवर रीजन. तो वो मेरे सीनियर थे, वो मेरे फर्स्ट मेंटर थे. फिर एक मेंटर थे जो अगेन ही वाज अ इंजीनियर एंड सीनियर पर्सन, ही वाज डूइंग गुड वर्क इन रायपुर. तो वो मेरे थे. फिर देन लेटर ऑन ऐसी हर बार स्केल अपने आप बढ़ता जाता था. मेरे रेजिंग द बार वाली जो बात है वो होती जाती थी. तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर डिफरेंट मेंटर्स इन माय लाइफ. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड टेक अवे फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. आई वुड से यू शुड डेफिनेटली हैव मेंटर्स, यू शुड डेफिनेटली बी इन लर्निंग मोड, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस जो आप सीखते हो वो ऑलवेज आपको ज़्यादा हेल्प करता है. You don't have to reinvent the wheel. You should start from where they have left or what they have learned. और खुद के मिस्टेक से भी सीखना चाहिए. That is what I always say. So what are some of the biggest mistakes जो entrepreneurs real estate में बनाते हैं when they start out? I think एक तो सबसे ज़्यादा हम जो गलती करते हैं, मैंने भी अपने लाइफ में किया, वो we get emotional with our projects. हमको लगता है यार ऐसा कुछ अच्छा बना दो, कोई ताजमहल टाइप से कोई अच्छा बना दो. तो हम ये नहीं, वी शुड नॉट बी इमोशनल विद आवर प्रोजेक्ट्स. ऑफ कोर्स वी शुड बी कनेक्टेड विद आवर प्रोजेक्ट्स, बट इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज अ वेरी फाइन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, कि एक अच्छी चीज़ बने जो इम्पैक्ट करे सोसाइटी में, इम्पैक्ट क्रिएट करे सोसाइटी में, और ऐसा भी नहीं हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए या सेलिब्रिटी कम हो जाए या प्रोजेक्ट का लेंथ बढ़ जाए. आप अच्छा बनाने के चक्कर में जो प्रोजेक्ट 3 साल में बन सकता है आप 5 साल में बना रहे हो. सो इट हैज़ टू बी वेरी फाइन लाइन बिटवीन एवरीथिंग. वो आपको करते करते समझ में आएगी. बट एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा कि डोंट गेट इमोशनल विथ योर प्रोजेक्ट, मेक अ फाइनेंशियल बिजनेस प्लान, डू प्रॉपर स्टडी एंड हायर गुड कंसल्टेंट्स, execute nicely within time frame and listen to your customers. अगर ये सब हम करते हैं तो आप आई थिंक गलती नहीं करेंगे. तो एक गलती जो आपने बोला कि क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, वो प्रोजेक्ट में इमोशनल होकर उसको कहीं भी ले आ लेते हैं. अच्छा फुल प्रूफ प्लान बनाओ, प्रोजेक्ट को मार्केट के हिसाब से बनाओ, और एक अपना सिग्नेचर चीज़ उसमें डालो जो आपको डिफ्रेंशिएट करे अदर प्लेयर्स से. वाओ. सो सर दिस क्वेश्चन इज़ फॉर द 20-year-old. एक कोई 20-year-old है और उसको कुछ रियल एस्टेट का करना है, बट ही हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल. व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या स्किल्स है या क्या उसको फोकस करना चाहिए सो दैट ही कैन समडे बिकम अ बिग रियल एस्टेट डेवलपर? सो सबसे पहले उसकी एजुकेशन के हिसाब से ही शुड वर्क अहेड. अगर उसकी एजुकेशन ने उसको हेल्प किया है या उसकी एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट है तो उसकी लाइन के हिसाब से वो रियल एस्टेट ज्वाइन करे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ ही इज़ गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, ही कैन ज्वाइन सम रियल एस्टेट रियल्टर्स कंपनी, चैनल पार्टनर कंपनी, and learn the front facade of the things. And suppose he's an architect, he can join a real estate company and be a intern in design team of the real estate company, coordinate with other senior architects of the firm and outsourced firm also. So आपको 4-5 साल में बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस डिज़ाइन का हो जाएगा.
इफ लेट्स से द पर्सन इज चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफिशिएंसी या CA बैकग्राउंड का है, तो सेम थिंग ही कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम सम रियल एस्टेट कंपनी. और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस, एनालिटिकल होते हैं, तो वो पार्ट आपको अगर क्लियर हो जाता है तो आपको हेल्प कर लेगा बाकी सब चीज़ों में. तो एक तो सबसे पहली बात, आपका जो स्किल सेट है उसका एडवांटेज लेते हुए पॉसिबल है तो आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ों में जुड़ जाएं, नंबर 1. और लेट्स से कि आप स्किल सेट से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो सबसे इजी वर्क है या तो चैनल पार्टनर कंपनी ज्वाइन कर लें या रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन कर लें. गिव योर सेल्फ 5-7 years मिनिमम, not less than 5-7 years. Don't be in hurry. Maybe 10 years. Learn all aspects of real estate. It is a very difficult business. Lot of knowledge is required. मतलब इसमें एक भी गलती आप कहीं भी नहीं कर सकते. आप ध्यान से सोचेंगे, एक भी गलती एक भी डिपार्टमेंट में आपने की, बिजनेस में इशू आ जाएगा. इट इज़ नॉट लेस देन अ मेडिकल थिंग. हम बोलते हैं ना हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती, वैसी वाली बात है. तो आप 5-7 साल 10 साल रिच एक्सपीरियंस लीजिए एंड देन एंटर इनटू बिजनेस. सर, सिंस रायपुर इज़ अ से Tier 2 सिटी, सो Tier 2 सिटी में थोड़ा टैलेंट मैनेजमेंट या हायरिंग में थोड़ा चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू Tier 1 सिटीज़. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसे राइट टैलेंट, आपने क्या देखते हो या कैसे आपने ढूंढा? नहीं, ये चैलेंज ऑलवेज रहा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है आपको आपकी हायरिंग का लेवल भी चेंज हो जाता है. तो जो आपके ओल्ड लोग रहते हैं वो एक लेवल तक रिलेवेंट रहते हैं, बट एज द कंपनी ग्रोज द मैनेजमेंट स्टाइल चेंजेस, द लेवल ऑफ पीपल ऑल्सो चेंजेस. सो सीनियर मैनेजमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली रहता है इन Tier 2-3 टाउन्स. बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रेनिंग, लर्निंग, ड्राइविंग थिंग माई सेल्फ, क्रिएट प्रोसेसेस, सिस्टम्स, technology adapt karna, so that you're not dependent on people more. So I always believe in creating processes, systems, technology, and hiring good people. Of course, try to hire good people possible. Create a good HR culture, very good HR culture. Give 20% salary more than the market standard, so that the people retains in your company. आप अच्छा पैकेज देंगे तो रिटेन करेंगे, आप अच्छा कल्चर देंगे तो रिटेन करेंगे. लाइक वी हैव एवरी ऑल्टरनेट सैटरडेज वी आर हैविंग हाफ डेज. सो आई बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस. आई डोंट बिलीव इन द स्टेटमेंट लाइक आदमी को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. आई फील कि रिजनेबल रहना चाहिए सब चीज़ें. एंड सो दैट इज़ द वन थिंग. और खुद को अगर आपको आइडिया पूरा रहता है, नॉलेज पूरा रहता है ना, तो इट पेज अ लॉट. योर टीम सीज कि I'm not indispensable. I'm not indispensable. Anyone can live. The boss and the team knows how to take it ahead. तो अगर आपको खुद का अच्छा नॉलेज रहे तो इट पेज अ लॉट. आई वुड से कि अच्छे से आप शुरू अर्ली एज ऑफ योर करियर में गिव योर बेस्ट, वर्क वेरी वेरी हार्ड, है ना. डोंट स्टिक टू टाइम लाइन्स. जस्ट फोकस ऑन लर्निंग. हाउ मच लर्निंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन. So after you started Avinash Group, you started from one project to so many more. So sir, what strategies helped Avinash Group expand beyond just that one project to multiple projects together? So one simple strategy was reinvesting in land. Okay. Whatever profits are there. So you were a more asset centric company. Initially, yes. Okay. Initial 15-20 years. वी वर एसेट. उस समय कल्चर भी वही था. उस समय जॉइंट वेंचर्स होते नहीं थे, पार्टनरशिप्स होती थी या फिर लैंड बाइंग्स वाला मॉडल था. तो हमने यही स्ट्रेटजी फॉलो की. फैमिली सपोर्टेड अ लॉट इन दिस कि दे अलाउड मी टू री इन्वेस्ट इन द लैंड्स. तो हमने शुरू में जो फर्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो उसी के आसपास में लैंड लेते गए तो और वो प्रोजेक्ट्स लाते गए. सो बहुत सिंपल फिलॉसफी थी इन द इनिशियल ईयर्स. तो और फिर जब 2-3 प्रोजेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ हो गए तो हम ऑलवेज वी वांटेड टू डू न्यू थिंग्स इन रियल एस्टेट. क्या नया करें, तो फिर हम कमर्शियल एक प्रोजेक्ट लेके आए. अच्छा. तो उस कमर्शियल प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट से लैंड मिल गई. तो उसमें पेमेंट प्लान अच्छा मिल गया. तो दैट वाज अ गुड प्रोजेक्ट देन.
एंड देन उसके बाद में ये सिमिलर मॉडल था, जब गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट में लैंड मिली तो वी ट्राइड फॉर अनदर ऑल्सो. सो वही मार्केट में रहते हुए जो सिंपल बेसिक्स हैं उसी को फॉलो किया. वर्क विद डेडिकेशन, reinvesting all your money in land only so that other projects can come, and then try to create good landmarks. अच्छे प्रोजेक्ट्स अच्छी क्वालिटी के बनाओ जो वैसे आपके शहर में बने नहीं हैं, तो जो अट्रैक्ट करें, डिफरेंशिएट करें बिल्डिंग को. सो वो थॉट ने आई थिंक बहुत अपील किया हमको. सो फॉर अ डेवलपर, कोई भी बिल्डर हो, उसके लिए रिलेशंस आफ्टर सेलिंग बहुत ज़्यादा लोग पहले तो नहीं करते थे, बट अविनाश ग्रुप का तो टैगलाइन ही है अ रिलेशन फॉर लाइफ. सो हाउ डू यू इंश्योर कि कस्टमर्स के साथ आप रिलेशन मेंटेन करें? ये एकदम क्लोज टू माई हार्ट क्वेश्चन है आपका. सो वी ऑलवेज बिलीव्ड इन रिलेशन फॉर लाइफ. हमारी फैमिली की वैल्यू सिस्टम में ये था कि हम रिश्तों को बहुत तवज्जो देते हैं. रिश्तों में बिजनेस भी करना पसंद करते हैं जिनसे नोन है जो लोग उनके साथ, और जो हमारे एक बार बिजनेस में कोई हमारे साथ एसोसिएट हो गए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी हो वो भी करते हैं. तो रिलेशंस ऑलवेज मैटर टू अस. सो यू व्हाट यू आस्क, कम अगेन प्लीज. कि हाउ डू यू इंश्योर, या कि आप किस तरह मेंटेन करते रिलेशंस? कुछ उनके लिए करते हैं, या एक बार आपने घर बेच दिया तो बाद में कोई इवेंट्स हो, ये हो? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम ऑलवेज ना, हमारी कस्टमर सर्विस आई थिंक इट मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट. दो डेज जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत कुछ अभी करना बाकी है, बट हमारा फोकस, आई वुड नॉट से हमारी बेस्ट है, आई वुड से कि मेरा पर्सनल फोकस सबसे ज़्यादा कस्टमर पे है. लाइक द एक्सपीरियंस पे, द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ द कस्टमर पे. आई ऑलवेज हैव जो भी चेक पॉइंट्स हैं वो ये इसी के अराउंड है, या हर वीक में जो मैं प्रीशियसली देखता ही हूँ, प्रिसाइजली देखता ही हूँ, जिसमें टाइम देता ही हूँ, वो है अनरिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स या सजेशंस जो हैं वो क्या है. तो वी हैव अ गुड, रीजनेबली गुड कस्टमर केयर सेटअप, जिसमें हमारे पास कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है. तो एग्जीक्यूटिव हर प्रोजेक्ट में है, देन देयर आर मैनेजर्स अबव देम, एंड देन दिस ऑल रिपोर्ट्स टू मी. मेरे पास एक फिक्स सिस्टम में वो आता है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कस्टमर कंप्लेंट्स और सजेशन, इट इज़ अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस पार्ट. आई ऑलवेज से कि इट इज़ द एक्सपीरियंस पार्ट विच इज़, हम घर बनाना, पहले क्या एक थॉट था कि बिल्डर का काम है घर बनाया बेच दिया, उसके बाद में कस्टमर जाने और गवर्नमेंट जाने. तो ये आजकल काम नहीं करता है. आपको ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है, और आपको मज़ा भी उसी में है. लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन भी उसी चीज़ का आएगा कि आपने जो चीज़ बनाई है उसको आदमी वैसा एंजॉय कर रहा है कि नहीं. मालूम पड़ा आपने घर बना दिया, कॉलोनी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बट द सोसाइटी इज़ नॉट मेंटेन्ड वेल. आपका नाम जुड़ा हुआ है, जो आपने विजुअलाइज किया था, जिस पर्पज से बनाया था, तो सर्व ही नहीं हुआ. सो वी इंश्योर, शुरू में हम 5 साल लगभग 2 to 5 years depending on the occupancy, we keep the maintenance with us. We have a good maintenance team, internal maintenance team, who ensures कि there is not only पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई. We do all these community events like नवरात्रि है, करवा चौथ में हम कैसे क्रिएट करें कि द वुमेन आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब गार्डन में, मंदिर के पास में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, है ना. सिमिलरली मकर संक्रांति में पतंग कैसे उड़ा सकते हैं लोग, है ना, एक ऐसा. तो व्हेन वी मेक टेम्पल, वी ट्राई कि टेम्पल कम्युनिटी गार्डन के साथ में ऐसी स्पेस में हो जहाँ हम इवेंट्स कर सकें. अच्छा. जैसे नवरात्रि है तो वहाँ पे नवरात्रि में डांडिया होने चाहिए. तो इस तरह का कम्युनिटी लिविंग को एनकरेजमेंट की हमारी टीम काम करती है. इट्स नॉट ओनली पानी, बिजली, सड़क का मेंटेनेंस. देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर दिस. देयर इज अ इवेंट पर्सन एट द हेड ऑफिस हु कोऑर्डिनेट्स. जैसे अभी होली आ रही है, तो होली में हम एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे रूप में, अच्छे स्केल में कर रहे हैं. और एक दिन पहले होली के वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर इन्वाइटिंग ऑल द प्रोजेक्ट मेंबर्स जो अभी बुला सकते हैं, जिनको, जो एक्टिव हैं, तो टू सेलिब्रेट होली. तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट है पूरे ऑफिस में भी, एंड विद इन द कस्टमर्स ऑल्सो. सो दिस काइंड ऑफ इवेंट आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव बीन डूइंग इट. एंड ये आप कितने सालों से कर रहे हो कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट्स? ये अराउंड 7-8 years से हमने एग्रेसिवली किया है, और पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ है ये. पोस्ट कोविड में जब कम्युनिटी लिविंग का और लोगों को इम्पोर्टेंस बढ़ा, तो हमने इसको ऐसा वो कर दिया कि दैट इज अवर, इट हैज स्लोली बिकमिंग अवर यूएसपी. एंड हैज दिस हेल्प्ड इन अविनाश ग्रुप्स ग्रोथ, से लॉन्ग टर्म ग्रोथ? 200%. And I see quite good ahead also, because our team is also getting strengthened, and we are also finding
इन द स्माइल्स ऑफ कस्टमर कि दे आर हैप्पी अबाउट दिस इवेंट्स, है ना. एंड देखिए हमारा बिजनेस ऐसा है ना, कुछ ना कुछ कमियाँ है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रहती है कस्टमर को. सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ इवेंट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम वन टू वन. तो जब आप मिलते हो कि हाँ भाई कैसा चल रहा है शर्मा जी या कैसा चल रहा है शुक्ला जी, तो दे टेंड टू टेल यू भाई साहब सब तो अच्छा चल रहा है, ये एक आप देखिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, तो आप रिकनेक्ट होते हो कस्टमर से. और कस्टमर भी देखता है यार ये आदमी सब सेल वेल कर दिया, इसको आने की क्या ज़रूरत है. आइडियली तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट ही इज़ इंटरेस्टेड टू कम एंड लिसन. तो ये इट हेल्प्स. और आपको मार्केट की पल्स वहाँ से मालूम पड़ती है, आपको अपनी टीम की इफिशिएंसी वहाँ से मालूम पड़ती है, कस्टमर ऑल्सो फील्स गुड अबाउट इट. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. एंड हमारा मोर देन 35% रेफरल से आता है अभी भी सेल्स. तो दीज आर ऑल अवर ब्रांड एम्बेसडर्स. तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि आप इसको सोचो कि क्यों करना नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज डू, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी कि आपने कस्टमर को सब कुछ बना के दे दिया, वो रह रहा है. अब वो रह रहा है तो वो इन्जॉय करते हुए रह रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना है बस. सो आपके लिए मतलब इफ़ यू वर टू से कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है. Our company's philosophy lies in two things. One is customer centricity and second is transparency. Okay. So it is very, very important. Customer centricity is very important for us. ट्रांसपेरेंसी आपने कैसे किया है इन रियल एस्टेट जिसमें ट्रस्ट इज़ द नंबर वन थिंग. So we are known for our commitments. We are known for our verbal commitments also. Sometimes Okay. हमारी टीम में कोई बंदा अगर सीनियर बंदे ने गलत कमिटमेंट गलती से कर दिया हो, अनइंटेंशनली भी कर दिया हो, तो वी ऑनर दैट. एंड अगर हमने भी जैसे आज रेरा तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, हम रेरा के पहले भी कस्टमर में अगर डिलेज होता था तो वी ऑलवेज हैड अ क्लियर पॉलिसी कि हम उनको जो उनका ड्यू रेंट है जो डिले हुआ है वो देंगे. हमारे बिजनेस में ये ऑलवेज रहा है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फॉर वाटर सप्लाई और फॉर कॉन्ट्रैक्टर पे भी हम डिपेंडेंट है कि टाइम पे कई बार बनते नहीं. तो डिले तो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस समटाइम्स. तो वी ऑलवेज ट्राई टू कंपनसेट एंड इट वाज वन ऑफ द थिंग. देन कमिटमेंट्स में हमने कभी भी लाइक वॉट एवर इज प्रिंटेड इन ब्रोशर, वॉट एवर कमिटेड इन आवर एग्रीमेंट्स, वी हैव बियॉन्ड दैट, वी ऑलवेज बिलीव इन गिविंग बियॉन्ड दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ट्रांसपेरेंसी इन दो चीज़ में ऑलवेज रही. बाकी ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशंस होते हैं कई बार, कस्टमर अनअवॉइडेबल रहता है, तो वी हैव दिस डिडक्शन पॉलिसी, बट 99% वी डोंट डिडक्ट. वी ट्राई टू रियम्बर्स द एंटायर अमाउंट. बिकॉज देखिए कोई मकान बुक किया है, प्लॉट बुक किया है, वो कोई रीज़न से कैंसिल किया होगा, कोई रियल प्रॉब्लम होगी. तो ऐसा हमारा कोई जनरली इतना नुकसान होता नहीं कि वी शुड डिडक्ट चार्जेस फॉर इट. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वी वेव ऑफ द कैंसिलेशन थिंग ऑल्सो. सो आई थिंक दिस हैज स्लोली बिल्ट अप इनटू सीन एज ट्रांसपेरेंट कंपनी एंड कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. I definitely agree, sir, that customer centricity is very important. But other than that, what do you think a business owner that he should focus on, and what are the various parameters that he should self-analyze? You know, how can he track his growth? एज ए बिजनेस ओनर देखिए ग्रोथ सबके लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा. For someone, it can be growth in revenues. For someone, it can be growth in number of projects. For someone, it can be growth in profitability. So, business में तो हम as a business is not meant for charity. हम तो business में definitely profit growing company होनी चाहिए, revenues growing year on year होने चाहिए. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो जो आपको ग्राउंडेड रखता है और सस्टेनेबल रखता है लॉन्ग टर्म, वो है हाउ द प्रोजेक्ट्स आर डिज़ाइंड सो दैट मतलब ये एक लंबे समय तक लोग उस पर अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस फील कर सकें, अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस फील कर सकें. तो दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील. देन अगर हमको एनालाइज करना है कि हाउ you're heading to, तो रेगुलरली एनालाइज द कस्टमर अनरिजॉल्व कंप्लेन. जो कंप्लेन्स आ रही हैं, जो सजेशंस आ रहे हैं, वो कितने अनरिजॉल्व हैं, वो आप रेगुलरली एनालाइज करें. सो यू कैन ट्रैक कि वेयर द कंपनी इज़ ग्रोइंग. कई बार हम होता है एक्सपेंशन मोड में रहते हैं और बैक एंड में ऑपरेशंस अच्छे नहीं चलते हैं. तो एज ए ओनर वी शुड एंश्योर दैट ऑपरेशंस आर रन वेरी स्मूथली.
तो how to ensure that these operations are run smoothly is the simplest part. Work is to just analyze your customer complaints regularly. उसका रूट कॉज एनालिसिस करिए, उसमें परमानेंट रिजोल्यूशन के लिए जो भी मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करिए. आपको पूरी कंपनी का थर्मामीटर निकल जाएगा, पूरी कंपनी का हेल्थ मालूम पड़ जाएगा कि विच डिपार्टमेंट इज डूइंग व्हाट एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट टू ट्रैक द ग्रोथ. बाकी तो सब ऑब्वियस है. नंबर ऑफ सेल्स बड़ा इजीली बता रहा है ग्रोथ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इजीली ग्रोथ बता रहा है, टर्नओवर इजीली बता रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इजीली बता रहा है. बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ चेक करने के लिए यही है कि यू शुड रेगुलरली see that your living experience is good, designs us as that, and then I said about the customer unresolved complaints. इसके अलावा एज अ बिजनेस ओनर योरसेल्फ आप कैसे आपका खुद का ग्रोथ ट्रैक करते हैं? इज देयर अ पर्टिकुलर वे कि आप खुद का ग्रोथ ट्रैक करते हैं? सो हर आदमी के अपने एम्बिशंस रहते हैं और मैंने भी लाइफ में टाइम के साथ में ऑलवेज नई नई चीज़ों का एक एम रखा, टारगेट रखा. लाइक पोस्ट कोविड जो है आई वॉज वेरी वेरी कीन एंड फोकस्ड कि हाउ माई कंपनी कैन बी अ टेक एनेबल्ड कंपनी, सो दैट अ पर्सन, जैसे हम आज इफ नॉट अमेजोन जैसा तो हम नहीं कर पाएंगे, बट लेकिन फिर भी आज अमेजोन की जो जनरेशन आई वुड से है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो सके. देखिए अमेजोन और जोमेटो ने क्या किया, थिंग्स को इतना होम डिलीवर्ड कर दिया, कस्टमर सर्विसेज को इतना इजी और फ्रेंडली कर दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर जेन ज़ी कस्टमर इज नेक्स्ट लेवल. I say to my team entirely always, don't be happy by just resolving simple complaints of customer. We need to enhance customer experience, and this can only be done in a very effective way by making the company and the portal technology enabled. We need to have a customer portal which is, वो रात के मेरा कस्टमर 11-12 बजे जब फ्री होता है, अपने ईजी मोड में रहता है घर में, ही कैन जस्ट सी कि उसके बुकिंग का क्या स्टेटस है, उसके घर का क्या स्टेटस है, कि उसके पेमेंट ड्यूज रिमाइंडर कौन से हैं, एग्रीमेंट्स उसको फेच करना है, ड्राफ्ट पढ़ना है तो ही कैन फेच एंड डू. मतलब अभी वो ट्रेडिशनल मेथड गया कि आदमी ईमेल कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है ना. वन प्लेटफॉर्म में ही शुड गेट एवरीथिंग. सो दिस इज़ आई फील कि हम सबको एज ए डेवलपर ये देखना है कि अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, उनके बिहेवियर, उनके हैबिट्स, और जितनी जल्दी हम टेक को इनेबल करेंगे तो एज आई वाज सेइंग, योर क्वेश्चन वाज कि आप अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं. तो मैंने अपनी ग्रोथ पोस्ट कोविड अभी पिछले 4 साल में इसी में देखी कि यार माई कंपनी बिकम्स अ टेक इनेबल्ड कंपनी. आई फाइंड ग्रोथ इन दैट. आई नो कि अगर मैं इस पर फोकस करूँगा तो बाकी पैरामीटर अपने आप आएंगे. There will be increase in sales number, there will be increase in project number of projects. We can obviously scale up when we have these platforms. Yeah. So easy to handle our company, same number of people can handle more customers. And this is one way of thinking how to have your growth checked. अभी next goal I am taking on कि how we can have effective quality control and effective safety methods, and then effective pre-handover processes, so that इसमें again हम quality, I give vision to our team कि we should make houses for 50 years. हम जब बोलेंगे 50 साल के लिए हमको घर के लाइफ बनाना है तो आप सोचिए हमारे सब डिसीजन चेंज हो जाएंगे. The quality of vendor we hire, the quality of material we use, the grade of concrete we use, the waterproofing style we use, the CP fittings or electrical cables we use. तो ये जो थी चीज़ें हैं हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपने आप लेके आएगी. ग्रोथ विल ऑब्वियस, बाकी जो ग्रोथ नंबर्स होते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, वो अपने आप आएंगे. तो अभी वही मैं जैसे कहा कि ग्रोथ का मैं हर टाइम में एक अलग टाइम एक अपना इंटरनल स्टैंडर्ड सेट करता हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ रियल बिजनेस ओनर्स की जो ग्रोथ वाली बात है वो एक है माइंड में कि वी वांट टू डेवलप 2 more सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम रायपुर वेयर वी कैन डू रियल एस्टेट बिजनेस. बिकॉज आई फील कि ऐसा भी नहीं है कि हम इंडिया में 10-20 शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए. रियल एस्टेट इज लिटिल रीजनल सब्जेक्ट एंड इट हैज़ टू हैव डेप्थ इन इट. और बहुत एग्जीक्यूशन आपको सावधानी से अच्छे से करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू 10 cities, we may go to 2 cities, create big centers
big setups there with good team, strong top management team, so that execution can be done easily and more project in these two cities than entering into many cities. So this is the model which we are adopting, and I think that would lead to so-called growth in the financial Fine. numbers. So, sir, this is business growth and your business targets and goals. Apart from that, how important do you think is it for an entrepreneur to work on his own personal growth? Does personal growth help you in your business growth as well? This is directly proportional. है ना? Okay. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो मैं यूज़ करता हूँ. आई से कि यू शुड एनीवन शुड इन्वेस्ट इन टू थिंग्स जिसमें आप इन्वेस्ट करो जो ऑलवेज आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे, अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें रिटर्न्स आएंगे. वन इज रियल स्टेट, अनदर इज योर सेल्फ. आप अपने में रेगुलर इन्वेस्ट करो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, वो आपको ऑलवेज अच्छे रिटर्न्स देगी. रियल स्टेट देती है, कभी भी नुकसान आपने सुना नहीं होगा रियल स्टेट में, अनलेस अनटिल कोई लिटिगेटेड प्रॉपर्टी आपने ले ली. तो पर्सनल ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आपको आपके सब डायमेंशंस ओपन करती है. आपको स्टिलनेस इज़ द की जो बोलते हैं ना, कि एक आदमी में कूलनेस, एक ठहराव इम्पॉर्टेंट है. वो बिजनेसमैन में, एंटरप्रेन्योर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कैरीड अवे हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, झगड़ लेते हैं. तो ये एज ए लीडर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दिस इरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्योस है सब अगल बगल में. अगर आप अपने पे फोकस नहीं करेंगे, अपने को आप कूल नहीं रखेंगे, तो यू नॉट बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस. तो आई थिंक डेफिनेटली. एंड व्हाट आर सम टेक्निक्स जो आपको हेल्प हुई है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ओवर द इयर्स? So I strongly practice this morning ritual. My morning, एक तो I wake up around 6:30 and before 9:30, मतलब 9 बजे के पहले तक मोस्टली इट इज़ मी टाइम. मैं फ़ोन वगैरह मिनिमम यूज़ करता हूँ. एंड देयर इज़ अ जिम ऑब्लिक योगा ऑब्लिक मेडिटेशन सेशन, नॉट ऑब्लिक मेडिटेशन, एंड दिस प्राणायाम इज एडेड विथ जिम और योगा. तो ये 1.5 घंटा मैं खुद के लिए रखता हूँ. हफ्ते में 4-5 दिन ये हो ही जाता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ. तो दिस मेक्स योर एंटायर थिंग वेरी अलाइंड, है ना. यू आर रेडी फॉर द डे एंड योर बॉडी इज़ रेडी फॉर द डे, एंड लॉन्ग टर्म भी ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. देन रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बच्चों को भी ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, इफ़ यू डोंट रीड इट इज़ इक्वलेंट टू यू कांट रीड. तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. भगवान ने इतना आपको एजुकेशन दिया है, आंखें दी हैं, आप इसको यूटिलाइज करो. यू शुड रीड, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप जिनकी बुक पढ़ रहे हैं, जो ऑथर रहते हैं, उनका जीवन आप जी रहे हैं एक तरीके से. सो इन वन लाइफ यू आर एबल टू लिव सो मैनी लाइफ्स. एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सेल्फ हेल्प बुक्स. तो दिस गिव मी ऑल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स. तो दिस हेल्प्स अ लॉट इन योर बिजनेस, डे टू डे बिजनेस. मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली this reading habits ने भी. तो this 2 things mostly I do. Then apart from this I always try, बहुत मुश्किल काम है हालांकि, ये बोलता हूँ easy said than done है, कि बिजनेस को जो है घर कम से कम लाओ आप. तो इस साल का भी मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है कि my working hours will start only after 9 AM and should end by 6:30 PM in the evening. In terms of thoughts also. 6:30-7 बजे के बाद में आपको बिजनेस के थॉट्स भी नहीं आने चाहिए. यू शुड बी प्रैक्टिकली एट होम. इतने सालों के बाद सर, डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? नहीं, आई एग्री इट इज़ डिफिकल्ट. इनिशियल ईयर्स में तो आपको सब कुछ अपना देना पड़ता है, बट और वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. हाँ, इट इज़ रियली टफ, आई एग्री. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली, है ना. तो आपकी यही ये ग्रोथ भी ना आपकी बॉडी और आपका ये थॉट डिसाइड करता है कि हमको कितना ग्रो करना है. कई बार मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि कितना ग्रो करना चाहिए, व्हाट टारगेट वी शुड कीप. तो ये आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करा देता है कि हमको कितना ग्रो करना है. आपकी जो ये टाइमिंग आपके पास इतना ही है. अपनी फैमिली को, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आप जितना ग्रो कर सकते हो करो. हायर गुड पीपल, हायर गुड टीम, बट वर्क बिटवीन दिस 2 टाइम ओनली, माइंडफुली. मतलब उसके बाद में आप घर में बिजनेस लेके आओगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो आई फील दैट इज़ नॉट अ गुड ग्रोथ. बट से फॉर समवन हु इज़ अ 20-year-old और जो अभी स्टार्ट कर रहा है, आप उसको भी ये एडवाइस देना चाहेंगे
No, क्योंकि no. वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एट एन अर्ली एज ही हैज सो मच टू लर्न ये सब. सो उस एज पे भी डू यू थिंक ही शुड फोकस मोर ऑन दिस वर्क लाइफ बैलेंस और शुड ही फोकस मोर ऑन वर्क फॉर अ सर्टेन एज एंड देन? नो, ऑफ कोर्स. देखिए, आप जो यंग जनरेशन है उनके पास तो टाइम है अभी. यू हैव एज एफ आई हैव टू play as a father, as a husband, as a leader in the society, as a elder in the joint family. Yeah. So lot of role I have to play as a senior person. But for young people, you have all the liberty. मतलब मैं भी 20 साल तक अपने करियर के तो बहुत आई वुड से abused my body. I worked very very hard. तो working hard is important, but working in harmony is important for the youth, I would say. हार्मनी मतलब ये हुआ कि आप संडे को भी काम कर लो, लेट नाइट भी काम कर लो, बट अगर इफ इट इज़ इन हार्मनी, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द फैमिली, विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉडी, तो दैट कैन बी डन. सो हाउ दैट कैन बी अचीव, दैट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेकिन काम तो शुरू में हार्डवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज़ नो शॉर्टकट. टाइम आपको पूरा देना पड़ेगा, बट आफ्टर अ स्टेज यू हैव टू डिसाइड कितना काम करना है, कैसे काम करना है. और अगर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो तो थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर. वाओ. सो इसके अलावा सर वी वर टॉकिंग अबाउट लर्निंग. तो क्योंकि इतना एनवायरनमेंट बदलते जाता है, आपने कोविड का बोला, आपने जैसे टेक का अडेप्ट किया. सो हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज़ फ्रॉम, वेयर डू यू लर्न कि नहीं अब मुझे ग्रो करने के लिए आई नीड टू डू दिस? कहाँ से ये सब सीखते हो? अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आपको अच्छा काम करना है, सिर्फ काम प्रॉफिट के लिए नहीं करना है, आपको काम एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए करना है, एक अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए करना है, और एक खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, तो अपने आप सब चीज़ें फॉल इन प्लेस करती है. कोविड ने हमको सिखाया कि कैसे हम घर से काम कर सकें, तो वो एक आई ओपनर था हम सबके लिए. रियल एस्टेट में किसी ने टेक सोचा नहीं था, एंड दैट वाज वेरी इजी कि क्यों नहीं हो सकता. हमने उस समय हम कोशिश कर ही रहे थे जूम कॉल कर करके कस्टमर को घर दिखा, वो भी कस्टमर घर में फ्री था, मतलब जिसके घर में टचवुड कोई अगर मिसहैप नहीं हुआ हो, तो ही वॉज फ्री टू सी द हाउस बट ही वॉज नॉट एबल टू गो. तो हम कैमरे से दिखा रहे थे, कोई हमारी टीम से कोई एक जन कैमरा से दिखा देता था, या वो सब चीज़ें सोच तो रहे थे ना. तो इस चीज़ को हमने ये समझ लिया कि यार लाइफ तो फ्यूचर में यही है. तो आपकी सर्कमस्टेंसेज आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो. इफ़ योर आइज एंड ईयर एंड योर माइंड इज़ ओपन टू इट एंड एक्सेप्टेबिलिटी इज़ देयर टू विजुलाइज आगे क्या होने वाला है. जैसे आज कोविड ने बहुत क्लियरली हमें विजुलाइज करा दिया. कस्टमर सेंट्रिसिटी अमेजोन और जोमेटो ने बहुत क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस करा दिया. अब हम इसको पिकअप नहीं करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो अ पर्सन हु डजंट अपग्रेड इज नोन टू बी गोइंग डाउनग्रेड. आप समझ लीजिए वो नीचे जा ही रहा है. एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर यू हैव टू अपग्रेड इन योर एक्शंस, इन योर बिजनेस, इन द वे यू रन बिजनेस. वाओ. सो इट्स नॉट जस्ट योर बिजनेस जिसको अपग्रेड करना है, खुद को भी अपग्रेड करना है. यस, हर एक चीज़ पे. या इसके बाद में नाउ टेकिंग इट टू अनदर लेवल, जो अपना बिजनेस है आपने ग्रो कर लिया, इसके बाद आ गया स्केल करना, कि आप एक सिटी में नहीं प्रेजेंट हो, मल्टीपल सिटीज़, या फिर आप अगर मल्टीपल सिटीज़ में हो, नेक्स्ट स्टेट में किधर जाना है. सो उसके लिए व्हाट आर द फ्यू थिंग्स कि आपने मान लीजिए आपने रायपुर छोड़ के बाद में आपने कोई और सिटी में स्टार्ट किया अपना बिजनेस, व्हाट वर द डेटा दैट यू एनालाइज्ड, या कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जो आपने चेक किए? तो वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रिलेवेंट ऑल्सो. ऑफ कोर्स देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किन सिटीज़ में पोटेंशियल है जो आगे 20 ईयर्स तक आपको दिख रहा है. तो वो पोटेंशियल सिटीज़ में ऑब्वियसली यू शुड गो इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि नंबर ऑफ सिटीज़ कैन नॉट बी मोर देन 2 और 3 टू स्टार्ट विथ, है ना. तो जो मोस्ट पोटेंशियल दिखेंगे आपको इंडिया में, उन सिटीज़ में जाना बेहतर है. तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो आप उसकी जीडीपी ग्रोथ, इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ वहाँ पे, और लोगों का वहाँ पे अट्रैक्शन कितना है, ग्लोबल कंपनीज़ का. जैसे आईटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. आईटी बहुत क्लियरली विजिबल है कि यहाँ आने वाला है, यहाँ आ सकता है. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रो कर रहा है, उस सिटी में करंट इन्वायरमेंट डेवलपर्स का कैसा है, डिमांड कैसी है, सेल्स वेलोसिटी कैसी है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं वो कैसे हैं, प्राइसिंग क्या चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट. एंड आजकल गूगल के इरा में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट ऑल दिस थिंग्स. देन दे आर गुड कंसल्टेंट्स, यू कैन हायर देम, एंड ऑन दिस पॉइंट्स यू कैन वर्क ऑन द टॉपिक्स. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन इतने सारे सिटीज़,
कोई सिस्टम्स या प्रोसेसेस जो आपने सेट किए हैं विच रियली हेल्प यू टू आप रायपुर में बैठे बैठे मॉनिटर कर पाएंगे कि ये सिटी का क्या प्रोग्रेस है? So abhi it's little early for this to comment because we have not started. It is just the initial process. But yes, मतलब अभी हम हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोसेसेस में बहुत काम कर रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया कि टेक एनेबिलिटी में हम काफ़ी कुछ अभी हमने किया है पिछले 2-3 साल में. उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. कस्टमर पोर्टल में हम काम कर रहे हैं. सो दिस ऑल थिंग्स अभी क्वालिटी पे, सेफ्टी पे, हैंडओवर्स पे, एक्सपीरियंस इन्हांस करने में बहुत काम कर रहे हैं. कस्टमर इंगेजमेंट में बहुत काम हो रहा है. तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं with good involvement of people, with good creation of SOPs and integrating with various softwares, है ना, इन सबको कनेक्ट कर रहे हैं. तो अभी डैशबोर्ड्स भी हमारे क्रिएट हो रहे हैं जो क्लियर विजिबिलिटी आपको बताते हैं कि विच डिपार्टमेंट इज डूइंग व्हाट एंड वेयर वी आर हेडिंग टू. तो ये सेम थिंग आई थिंक कैन बी इजिली रेप्लिकेटेड टू अदर सेंटर्स व्हेन वंस इन प्लेस, वंस फॉलन इन प्लेस. तो एक बार एक आदत हो जाएगी, कल्चर बन जाएगा, एक सिस्टम्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू enable similar thing in those cities, other those cities centers. as well. So sir, most business owners एक बार एक लेवल पे आ जाते, ग्रो कर लेते, and then the growth becomes stagnant. They are not able to go beyond that certain level. What are the reasons do you think कि ये होता है उनके साथ? देखिए, एक तो बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि आदमी बोर हो जाता है वही वही करके. तो आई ऑलवेज से कि एंटरप्रेन्योर तो वही है जो डेली चैलेंजेस ले, चैलेंजेस इनवाइट करें. एक तो होता है कि चैलेंज आएंगे, आप उसको फेस कर लो, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया या फिर कोविड आया या फिर एनी सिचुएशन लाइक लीमन ब्रदर्स का उस समय आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया. सो ये तो एक तो आपके कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ हुई. तो हम एज ए एंटरप्रेन्योर जब तक खुद भी चैलेंजेस नहीं लेंगे तब तक हम उस पर इंजॉय नहीं करेंगे, या आपको लगेगा अब हम ग्रोथ कैसे करें. तो आप जब अहेड ऑफ टाइम सोचते हैं, चैलेंजेस इनवाइट करते हैं, नई चीज़ें सीखने की आपको इंटरेस्ट रहता है, इम्प्लीमेंट करने का इंटरेस्ट रहता है, दैट ओनली ड्राइव्स द कंपनी, दैट ओनली ड्राइव्स द पीपल. जो लोग आपसे जुड़ते हैं ना, वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अपनी सैलरी के लिए सिर्फ नहीं जुड़ते हैं, वो कंपनी के बिगर पर्पस को देखते हैं या कंपनी के थॉट प्रोसेस को देखते हैं, लीडर्स के थॉट प्रोसेस को देखते हैं, मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को देखते हैं. सो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखिए, जॉब आपको बोर कर देगा बहुत जल्दी. आप अगर बिजनेस को एज ए जॉब या फिर एज ए बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट स्टेगनेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई वुड से इनवाइट करें चैलेंजेस को, लुक फॉर न्यू थिंग्स. एंड चैलेंजेस तो हैं ही, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. न्यू जनरेशन जो जेन जी जो जनरेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन आप बैठो, उनसे बात करो, आपको समझ में आ जाएगा. वेरी ट्रू सर. सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टाफ इज इंश्योर्ड क्योंकि उनके KPIs रहते हैं, हर एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. लेकिन उसी तरह एक बिजनेस ओनर्स के लिए भी KPIs होने चाहिए. सो बीइंग द MD ऑफ अविनाश, व्हाट आर योर KPIs सर? So the number one KPI is obvious, like there should be growth in revenues and the bottom line every year. So that is the number one KPI. And बाकी जो फिर KPIs हैं वो रिलेटेड टू न्यू एम्बिशंस हैं. और कई बार ग्रोथ इन टर्नओवर ओनली पॉसिबल है, जैसे मार्केट का एक साइज होता है, बियॉन्ड दैट साइज दे कैन नॉट बी ग्रोथ एवरी ईयर ऑफ द डिजायर्ड परसेंट, सैचुरेट हो जाता है. So that allows us to think beyond the geography, that allows us to move, that makes us think to move beyond our comfort zone. So these are the KPIs. अभी बहुत tough time चल रहा है. Lot of new expansion has to come now. Lot of new geographies has to be included because एक market में एक saturation है. I see saturation next to 3 years, 4 years. कि इसके बाद में जोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी. तो वी आर वर्किंग ऑन इट सो दैट बिफोर अहेड ऑफ द टाइम वी कैन डू दैट, बिकॉज रियल एस्टेट में ओवरनाइट तो हो नहीं सकता. आप आज सोचते हो वो 3 साल बाद एग्जीक्यूट होता है. सो आपने जैसे मेंशन किया, एक तो हो गया टॉप लाइन बॉटम लाइन, सेकंड वुड बी स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी. बट इसके अलावा इन द डे टू डे वर्किंग आप क्या क्या चीज़ें हैं जो कोई, अगर आप जिसके लिए अकाउंटेबल होंगे, ऐसे कि जो आपके रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लैंड एक्विजिशन एट द राइट टाइम, दैट कैन बी मे बी वन, बट यू वुड नो बेटर.
सो नंबर 1 KPI इज बिजनेस डेवलपमेंट कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आज आप कोई डिसीजन लेते हो उसमें 3 साल 2 साल बाद प्रोजेक्ट आप आता है, तो एवरी ईयर वो एक सेट नंबर है कि हमको इतने बिजनेस डेवलपमेंट डील्स क्लोज करनी है सो दैट आगे की साइकिल मेंटेन रहे. दैट इज़ नंबर 1 जो मेरे KPI में. नंबर 2 इज़ डिज़ाइन. आई वॉन्ट माई ऑल द प्रोजेक्ट्स टू कम अप एज अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट्स आर फॉर 50-70 ईयर्स में भी. तो इसमें डिज़ाइन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा पर्सनल इनपुट भी बहुत मैटर करता है. एंड वी ऑलवेज ट्राई टू डेवलप कि हर प्रोजेक्ट में एक USP ऐसा हो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर हो, एकदम क्लियरली डिफरेंस हो उस प्रोजेक्ट में और बाकी चीज़ों में. तो दैट इज़ नंबर 2 KPI फॉर मी. एंड नंबर 3 KPI आई वुड से माई टीम. मतलब स्ट्रेंथनिंग द टीम इज़ द कोर थिंग. मतलब अगर आपकी टीम स्ट्रॉन्गर है, योर कंपनी इज़ एज स्ट्रॉन्गर एज योर टीम, बोलते हैं लोग. एंड देन मेरी फेवरेट लाइन जो मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आई डोंट, जैसे फोर्ड ने कहा था, हेनरी फोर्ड ने, जब वो फोर्ड कंपनी के बारे में बोलते थे तो बोलते आई डोंट मेक कार्स, आई मेक मैन. That is what I also believe in, कि I want to create a strong team, and every day this team has to get stronger. They should speak my philosophy, company's philosophy. They should they should talk like they are as passionate as me or our top management is. So that is the main gain at the end of the day. तो ये 3 KPI हैं जो काम करती हैं आई फील. इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हर एक के जैसे मैनेजर्स रहते हैं, लेकिन एक मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए कौन होगा जो अकाउंटेबल होगा? सो आपके कोई कोई ऐसा है जिसके लिए जिसको आप अकाउंटेबल हो, से योर फैमिली और से समवन एल्स लाइक अ बिजनेस एडवाइजर या कोई गुरु, ऐसे कोई है? सो यस, एक तो माई अंकल हु इज़ माई guru, who's my philosopher, who's my elder in the family, who's the chairman of the group. He is the person whom I'm accountable to. Okay. But he's a very dynamic leader. मतलब वो ऐसे अकाउंटेबल नहीं है, बड़े प्यार से वो अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं या ले लेते हैं. तो इट इज़ लाइक दैट. एंड देन मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी रहता है कि कंपनी हमने यहाँ तक लाई है तो वेयर इट शुड गो. एज आई से कि continuing or maintaining the top position. As of now, we are number 1 real estate company of Central India in terms of turnover, in terms of employee, in terms of number of projects. So maintaining this and further growing is always a challenge. Though we are not doing it consciously, we never became number 1 consciously working on it. It was just the number we came to know later on. तो ये अपने आप में मेंटेन करना इस पोजीशन को और इसके आगे लेके जाना, तो अपने आप में एक अकाउंटेबिलिटी रहती है खुद के लिए. ट्रू. सर, इन टर्म्स ऑफ अगेन अकाउंटेबिलिटी में कि अगर आपके कोई कंसल्टेंट्स है, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ कंसल्टेंट्स इन अ बिजनेस टू स्केल इट? एज आई सेड कि योर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर टीम मेंबर्स आर, योर कंपनी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर टीम मेंबर्स आर. तो कंसल्टेंट आर पार्ट ऑफ द टीम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब हम हर प्रोजेक्ट के हमारे जो आर्किटेक्ट रहते हैं, ऐसा नहीं कि सेम आर्किटेक्ट्स हम रिपीट कर रहे हैं ब्लाइंडली. डिपेंडिंग ऑन द लैंड, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, द आर्किटेक्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज एवरी आर्किटेक्ट इज यूनिक इन हिज ओन वे. मैंने एग्जांपल आर्किटेक्ट का दिया, इट गोज सेम विथ ऑल द कंसल्टेंट्स कि हमारे कंसल्टेंट्स भी सब वी ट्राई टू बी एसोसिएट विद गुड कंसल्टेंट्स ऑफ द कंट्री. एंड ये डेफिनेटली पे करता है उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज. एंड वी आर अ वेरी ओपन कंपनी. नॉट वी डोंट इम्पोज एनी थिंग टू वेदर इट इज़ कंसल्टेंट और वेदर इट इज़ अवर टीम. वी ऑलवेज इन्वाइट सजेशंस या व्हाट इज़ गुड प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, व्हाट आर न्यू थिंग्स गोइंग ऑन. तो कंसल्टेंट इज़ द बेस्ट पर्सन टू गिव अस दैट पर्सपेक्टिव. सो और आई बिलीव इन चेंजिंग देम ऑल्सो. हमारे साथ जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं, बट ऐड होते जाना चाहिए कंसल्टेंट. हमको नए एनर्जी, फ्रेश एनर्जीज, फ्रेश आइडियाज़ मिलने चाहिए. वाह. सर, आपके इस जस्ट बात करने से या फिर जस्ट इसे काफ़ी समझ रहा है कि फॉर यू योर टीम इज़ वेरी लाइक एज अ लीडर आई थिंक यू थिंक अ लॉट अबाउट योर टीम. सो फॉर यू व्हाट टाइप ऑफ अ लीडर डू यू थिंक यू आर से, या फिर कोई ऐसे प्रिंसिपल्स है लीडरशिप के विच आर इन प्लेस टू इंश्योर कि एम्प्लॉय का वेलफेयर या ऐसे कुछ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड क्लोज टू माई हार्ट अगेन. सो एक तो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल सेंट्रल लीडरशिप है.
हमारे कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं विच इज़ नॉन नेगोशिएबल, है ना. जैसे मैंने बताया आपको, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन इन डिज़ाइन, टाइमली डिलीवरी एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी. ऐसे 4-5 ही हैं जो नॉन कॉम्प्रोमाइज हैं और होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल हैं. तो इसके बेसिस पे लीडरशिप चल रही है. तो बहुत क्लियर है कि मैनेजमेंट ये सोच रहा है या टॉप लीडरशिप या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, एकदम क्लियर है. दूसरी लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक स्टाइल, एम्पावरिंग स्टाइल, कि जो हमारे HODs हैं वो एम्पावर्ड हैं. आई वॉन्ट देम टू बी मोर एम्पावर्ड. आई ऑलवेज से टू देम कि डोंट इन्वॉल्व मी इन ट्रांजेक्शनल ऑपरेशनल थिंग्स. भाई आप लोग को मालूम है, यू हैव टू टेक द कॉल, यू आर द HOD ऑफ द डिपार्टमेंट. Delegate. Delegate. So I believe in empowering more and more. Of course, we are in touch. There is a quarterly review system. There is a monthly review system. There is a daily meeting also happening where they talk about what is the achievement of the day and what is the achievement of the day to be. नेक्स्ट डे का क्या होने वाला है. तो वो सब चीज़ें हैं, कनेक्टेड हैं. एंड आई एम ऑलवेज वन फोन कॉल. थर्ड लीडरशिप स्टाइल इज कि आई एम अवेलेबल, आई एम एक्सेसिबल, बट आई एम नॉट एज अवेलेबल. आई एम ऑलवेज अ फोन कॉल अवे, या यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट. टाइम लेके आप आ जाओ, अदरवाइज आई एम एक्सेसिबल. तो ये तीनों लीडरशिप, मैंने जैसे बोला आपको कि तो डेमोक्रेटिक स्टाइल है, दूसरी एम्पावरिंग स्टाइल है, एंड थर्ड प्रिंसिपल सेंटर्ड है, एंड फोर्थ इज कि यू आर एक्सेसिबल दो यू मे नॉट बी अवेलेबल. सो फॉर अ लीडर किस तरह ही कैन इंश्योर, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी पर्सन डाउन द हायरार्की को आपका विजन और ये कम्युनिकेट हो, कुछ आपने कुछ वैसा इंश्योर किया है इन योर ऑफिस और क्वार्टरली और मंथली से टाउन हॉल्स, ऐसे कुछ भी आपने इम्प्लीमेंट किया है? We try to have one town hall once a quarter. मतलब Okay. ये it can be in various form. Like जैसे हमारी एक HR मीट होती है ना, वो once a year होती है, बट ऐसा हम करते हैं कि once a quarter every this kind of activity हो जाए. एक टीम अलाइनमेंट मीटिंग होती है, we call it TAM, है ना. तो वो हो जाती है एक क्वार्टर में. और एक मीटिंग होती है जो इनफॉर्मल रहती है, लाइक दिवाली मीट और न्यू ईयर मीट, है ना, जिसमें थोड़ा लाइटर टोन पे रहती है. तो एक मीट हो जाती है जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की होती है, पहचान हम लोग उसको बोलते हैं उस इवेंट को. अच्छा. तो उसमें पहचान का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचानना है और उसको क्रिएट करना है. तो ऐसे 4-5 इवेंट हैं जो वंस अ क्वार्टर में फॉल करते हैं. वो काइंड ऑफ टाउन हॉल है, इनफॉर्मल है मोस्ट ऑफ द टाइम, इन सम ऑफ द टाइम, एंड सम ऑफ द टाइम इट इज़ formal. Many of the time it is formal. So I think this also works well in our case. We were talking about purpose earlier. So आपने बोला मेरे इधर जो भी काम करते हैं उनका भी एक पर्पस क्लियर रहना चाहिए. How do you ensure कि they realize their potential and their purpose? So whenever I am given an opportunity to meet this team, मतलब there are around 400 people, मैं always उनको यही बात करता हूँ कि मेरी फेवरेट लाइन यूज़ करता हूँ उन लोग के लिए कि इफ़ यू लव योर जॉब यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आई एम मिसफिट इन दिस वर्क एंड आई कैन बी फिट इन दैट वर्क, तो यू कैन ऑलवेज प्रपोज अस, लेट द HR नो, you can write email to me directly or you can connect to me directly. But fitment is very very important. आप अगर राइट फिट रहे, राइट प्लेस रहे, तो यू कैन डू अमेजिंग. आपको टाइम का मालूम नहीं पड़ेगा, यू विल वर्क इन अ फ्लो एंड रिजल्ट्स विल बी ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड. आपको पर्सनल भी जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, कंपनी को रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, है ना. तो व्हेन यू सी वर्किंग दिस केरलाइट नर्स इन द हॉस्पिटल, यू कैन क्लियरली सी द पर्पस इन देयर लाइव्स. उनका एक अलग ही इन्वॉल्वमेंट आपको दिखता है. क्लियरली वी सी दोज थिंग्स, है ना. तो ऐसे कई जगह हम क्लियरली हमको लगता है कि फिटमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो, जब मैं पिछले 2 साल में आई एम वर्किंग क्वाइट अ गुड ऑन रिक्रूटमेंट. मोर देन 200 इंटरव्यूज आई मस्ट हैव टेकन, मिड लेवल से सीनियर लेवल तक, टॉप लेवल तक. तो उसमें ऑलवेज मैं यही समझने की कोशिश करता हूँ कि दिस पर्सन इज मेड फॉर वॉट. कई बार ऐसा होता है ना, आदमी मल्टीपल चीज़ों में उसका इंटरेस्ट रहता है या उसके स्किल सेट रहते हैं या उसका प्रोफाइल दिखाता है. तो आई स्पेसिफिकली आस्क, अगर यू आर इंजीनियर, व्हाट यू डू गुड इन इंजीनियरिंग पार्ट, विच इज़ योर फेवरेट थिंग. तो हमारी कंपनी में अगर वहाँ फिटमेंट पॉसिबल है तो आई विल प्लेस इट अकॉर्डिंगली. सो आई एज यू आस्क कि कैसे उन लोगों का रोल सही हो, तो आई ऑलवेज गिव देम लिबर्टी एंड से मोर ऑफ द टाइम एंड पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट कि आपका फिटमेंट सही है कि नहीं.
that would definitely give good results. Talking more about you now, so sir, you have projects, multiple projects together going on. How do you do your time management? Is there any specific techniques जो आपने रखी है to manage your time? So नॉर्मली मैनेजिंग टाइम तो एक फॉर्मेट, एक सेट है, होता ही है, एक रूटीन आपका शेड्यूल सेट रहता है कि इतने बजे उठना है और ये टिपिकल आवर्स रहते हैं. बट मैं ना कोशिश करता हूँ कि हार्मनी वाला मॉडल अडॉप्ट करूँ. जैसे कई बार होता है कि मंडे मॉर्निंग है ना, एंड आपको उतना एनर्जी लेवल नहीं लग रहा है ऑफिस जाने का, तो आई टेक अ ब्रेक. अगर अवॉइडेबल मीटिंग्स हैं तो आई कम्युनिकेट टू द टीम एंड आई टेक अ ब्रेक, एंड फिर एनर्जाइज्ड होके, बेटर फील करके, वेल रेस्टेड फील करके आई जॉइन ऑफिस. एंड मे बी देन आई वर्क मोर दैट डे. या मे बी कई बार वीकेंड्स हमारे प्रोजेक्ट लॉन्चेस रहते हैं, कस्टमर मीटिंग्स रहती हैं, लैंड डील्स का कोई मीटिंग रहता है, तो काम हो जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट, एक कैलेंडर या फिर एक टाइम शेड्यूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हार्मनी में हो कि नहीं, है ना, विद द इन्वायरमेंट. फैमिली भी समझती है आपको कि बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 to 5 या 9 to 7 आपको स्टिक रहना है. कई बार एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेट नाइट हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, या वीकेंड्स में हो सकती है, या नियर टू दिवाली हो सकती है, धनतेरस हो सकती है. तो आई बिलीव इन कि आप रेगुलर ब्रेक लें और क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें. बट अंडरस्टैंड योर सेल्फ when your body is well rested, when you are in a great energy to work. And इतना तो एंटरप्रेन्योरशिप में लिबर्टी है. वी आर नॉट वर्किंग फॉर समवन, सो दैट लिबर्टी इज देयर. एंड एज ए लीडर हमारा एनर्जाइज और फुल टाइम एजाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू लीड द कंपनी. So say we were talking about a business, we started from ideation to अभी now we are at scaling. So scale करने के बाद में क्या areas है which a business owner should focus his time on? फिलैंथ्रोपी शुड बी पार्ट ऑफ द बिजनेस नाउ. मतलब आदमी सोचता है कि मैं एक एज के बाद या इतने टर्नओवर के बाद में करूँगा. आई वुड से कि जब भी आपको लगे कि जरा भी आप स्टेबल हैं, इसको पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना चाहिए, और उसी जोन में करें तो और अच्छा है जिसमें आपका बिजनेस हो. जैसे आप रियल एस्टेट में हैं तो यू कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग फॉर द कम्युनिटी with your cost, with your CSR fund or with your whatever fund available for you. तो वो और रिलेवेंट रहता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी होता है क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ खुद क्रिएट कर सकते हैं. हमने इसमें रिसेंटली काम भी किया. एक हमने स्कूल बनाया फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. 100 लोगों का स्कूल है ये बच्चे बचपन से ही बोल और सुन नहीं पाते हैं, तो इनके लिए स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल है 100 लोगों का, विथ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, विद मेसिंग एंड फूड एवरी एक्टिविटी. तो वो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था वो, क्योंकि सिंस आई एम सो कॉल्ड गुड इन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन पार्ट, आवर कंपनी इज़ गुड इन दैट, तो वी ट्राई टू डू दैट थिंग एंड इट हैज़ कम अप रियली नाइस. पीपल व्हेन दे से कि बिल्डिंग को देख के लगता है कि दिल से बना हुआ है, सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं किया गया, नॉट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी. यू फील गुड, you feel good कि your work speaks and you have done something for the society. It's not only the money which you have given, it is the thing you have created for them. Very true. So that would be giving time, and afterwards say business का CSR या फिर ये सब ज़्यादा करना चाहिए, social initiatives. हाँ, of course ये करना चाहिए. But इसके अलावा in terms of let's say 24-hour day है, 8 hours काम कर रहा है, so उसमें how should a business owner who is trying to scale break that down? क्योंकि क्या हो जाता है मंडेन वर्क आवर्स में, नहीं तो वही रूटीन में होता है, ऑपरेशंस में तो कभी ग्रोथ होती नहीं है. सो बहुत बार उनको स्ट्रैटेजी या इस सब में टाइम स्पेंड करना चाहिए. सो कितना टाइम से 8 आवर्स में से दे शुड ब्रेक डाउन अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंग? Only 2 hours should be given for operations. ओके. Only 2 hours. और ऑपरेशंस को जितना आप एज ए लीडर, एज ए स्ट्रैटेजिक लीडर, एज ए प्रोग्रेसिव कंपनी आप ऑपरेशंस का टाइम रिड्यूस करोगे, उतने ही कंपनी प्रोग्रेस करेगी. सो यू शुड ट्रैवल मोर, यू शुड लर्न मोर, यू शुड मीट people, you should attend conferences, you should chill, you should just take a break and introspect, give time to your body, yourself, keep yourself motivated, give time to your hobbies so that your mind remains agile, give time to fitness and all those things, give time to strategy,
give time to your people, talk to them personally on personal level, call them to your home, have a cup of tea at your home, just discuss what is going on without any PowerPoint presentation, without a preset agenda. Oh. Just connect with them, just listen to them what they are saying. And I think this is the best thing you can do. Otherwise operations mein you're not going to add great value. After some years, after the experience of so many years, you feel ki you should add value to your people. Yeah. I always talk to our team whenever I talk to what value I'm adding to this meeting. Am I required? You guys can take it. Yeah, if I'm required, I'll always be there. I'm always available. है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो धीरे धीरे टीम भी अपने आप को एम्पावर्ड भी फील करती है, फिर वो वैल्यू भी करती है आपके टाइम का, एंड देन आप रियल गुड टाइम दे सकते हो, इनपुट्स दे सकते हो जो काम आते हैं कंपनी को. सर आपने इंट्रोस्पेक्शन मेंशन किया, सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट फॉर अ बिजनेस ओनर टू इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ, एंड हाउ ऑफन डू यू डू इट, और हाउ ऑफन शुड वन डू इट? इंट्रोस्पेक्शन इज ऑनगोइंग प्रोसेस. तो इसके भी कई तरीके होते हैं इंट्रोस्पेक्शन के. आप इंट्रोस्पेक्शन एज एन इंडिविजुअल, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए बिजनेस लीडर, और एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि हाउ यू कैन इंट्रोस्पेक्ट कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, लाइक शुड वी मूव टू अदर जोग्राफी और नॉट, या शुड वी स्केल अप और नॉट, और आर वी रियली डूइंग गुड, are we sticking to our philosophies, are our projects delivering the way we thought, we visualized. So introspection is an ongoing thing and it should be done for everything. जैसे हम बोलते हैं ऑडिट करना, तो इंट्रोस्पेक्शन इज अपने आप में इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं आप, तो इट शुड बी डन, दैट इज फॉर श्योर. फ्रीक्वेंसी कैन बी एज रिक्वायर्ड, बट इंट्रोस्पेक्शन डेफिनेटली शुड बी एनकरेज एंड शुड बी डन. How often do you introspect? I believe a lot in introspection. So मुझे जब भी ट्रैवल टाइम मिलता है या फिर ज़रा भी फ्री टाइम मिलता है, तो मेडिटेशन से भी मेरा इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, या जस्ट क्लोजिंग माई आइज़ एंड नॉट स्लीपिंग से भी इंट्रोस्पेक्ट हो जाता है, वो जो मैं यूजुअली ट्रैवल टाइम में करता हूँ. या फिर टीम के साथ भी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि सब जो डायरेक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे बात करें कि भाई ठीक चल रहा है कि नहीं, whatever new initiatives we have taken, या जैसे साइज कंपनी की बढ़ जाती है, आप थोड़े से कई बार फील करते हो कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो लोगों से, लोअर लेवल में जो कई लोग कई साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो कई बार उनसे फ़ोन में बात करके कनेक्ट कर लेता हूँ कि अरे भाई सब ठीक है कि नहीं, मतलब तुम लोगों को कैसा लग रहा है, रोज़ लोग नए नए जुड़ रहे हैं, नए सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. ये सब चीज़ें तरीका है इंट्रोस्पेक्ट करने का या कनेक्ट करने का लोगों का. तो इंट्रोस्पेक्शन एंड कनेक्शन, to connected मतलब to be connected from heart to heart, not for the sake of networking वाला connection नहीं, connected genuine, हाँ genuine connect कि your person down the line should know कि yes boss is connected to me, या I am connected to him, I can reach out to him as required, कोई personal problem हो तो भी. Wow. सर ऑल ऑफ दिस थियोरीज आपने काफ़ी सारे मेंशन भी किए, आपने इकिगाई मेंशन किया, क्लियरली यू लव बुक्स एंड लाइक यू मेंशन आपको सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पसंद है. विच वर योर फेवरेट बुक्स विच हैज़ रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन यू? So the first book I clearly remember which created impact, I would start from the first book. वो थी 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Very game changing book. उसका प्रिंसिपल सेंटर लीडरशिप का जो चैप्टर था वो बहुत इम्प्रेस किया मुझे. वो लाइफ टाइम मुझे एक वो पाथ दिखाया कि कोई भी डिसीजन कैसे लेना है. इफ योर प्रिंसिपल्स आर क्लियर ना, डिसीजन लेना बहुत आसान है. अदरवाइज भी बिजनेसमैन टेंड टू सी प्रॉफिट एंड डेविएट हो जाते हैं. तो प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप रहेगी तो ऑलवेज आपके डिसीजन मेकिंग ईजी रहेगा. वो मैंने वहाँ से सीखा. तो दैट इज़ द फर्स्ट बुक विच इज़ आई स्टिल रिमेंबर एंड आई गिव क्रेडिट टू. देन अभी रिसेंट में मैंने 3-4 बुक पढ़ी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे. स्टिलनेस इज़ द की, ये ऑथर हैं, इसके यूएस के ऑथर हैं. बहुत अच्छी बुक है ये भी, स्टिलनेस इज़ द की. वो लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. अच्छा. तो दैट इज़ वन गुड बुक. देन अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, रॉबिन शर्मा की, 8 Wealths of Life, या वेल्थ विच मनी कांट बाय. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो वेरी इंटरेस्टिंग बुक अगेन। ये 2-3 बुक है जो मुझे याद है। इकिगाई मैंने बताया ही आपको। अभी इकिगाई के ऑथर ने एक बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक है वो भी, अभी पढ़ रहा हूँ वो मैं। 4 पुरुषार्थ्स ऑफ लाइफ, वो इंडियन फिलॉसफी पे है। सेम ऑथर ने जैपनीज पे इकिगाई बनाई थी, अभी इंडियन फिलॉसफी पे बनाई। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं अपने इंडियन फिलॉसफी में, माइथोलॉजी में, हाउ दे कैन बी की फॉर योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ। तो वो दैट बुक इज इंटरेस्टिंग विच आई एम रीडिंग नाउ। Sir, after so much introspection and looking back on your entire journey, do you have any regrets in life? Yeah, I have one regret in life, which is related to family. I lost my mother very at my early age. She was around 55 that time, in 2008. तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज वेरी बिजी इन माई लाइफ, इन माई वर्क, वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क कि क्या कर रहे हैं। एंड मॉम ऑलवेज एक्सपेक्टेड टाइम फ्रॉम मी। एंड मुझे लगता था अभी तो काम का समय, अभी काम करते हैं, आगे मम्मी को समय तो देना ही है, दे देंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए। तो दैट वॉज माई रिग्रेट कि मैंने लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। एंड उस समय टाइम दे सकता था, इतना भी कुछ नहीं था, तो टाइम देना चाहिए था। दैट इज़ वन बिगेस्ट रिग्रेट इन माई लाइफ। Then same goes with my kids also. They were growing and I could not focus on them. मेरा focus कंपनी को grow करने में था, उनकी growth में इतना involvement नहीं था। तो these 2 regrets I have. If you talk about professional regrets, तो प्रोफेशनल बिजनेस में जो रिग्रेट था वो ये था कि शुरू के 10 years में सिर्फ कंपनी प्रोजेक्ट्स उस पर फोकस था, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कम था, फाइनेंशियल क्लोजर पे बिलीव कम था। और टाइम भी ऐसा चल रहा था कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सक्सेस मिलती जा रही है। तो लीमन ब्रदर्स वाला जो फिर वो आया पीरियड, तो वो मुझे रियलाइज़ कराया। एंड 2008 to 2012 तक वी स्ट्रगल्ड इन फाइनेंशियल फ्रंट इन प्रोजेक्ट्स। एंड आफ्टर दैट 2012 के बाद में हमने टचवुड फाइनेंशियल क्लोजर को बहुत स्ट्रांगली लिया, फाइनेंसेस को स्ट्रांग किया। तो दैट दिस 3 आर रिग्रेट्स, 2 पर्सनल एंड 1 फैमिली रिग्रेट, बिजनेस रिग्रेट। So, sir, what would a 22-year-old Anand Singhania do in today's time? I would give more time to learn by doing jobs of all kinds. I'll be having 2-3 mentors, one real good coach, and work very, very hard and do a lot of marathon, cycling, and whatnot. Develop my hobbies, give time to my hobbies, travel a lot. I'll extract everything, whatever possible from life. And would you still choose real estate in today's age? 200%. In today's age, real estate has become more interesting. We are talking about 3D printing. Yeah. We are talking about movable homes. We are talking about smart homes. So this is a very interesting time. And I lack this kind of knowledge and skill in today's time at my age. So today's 22-year-old has so much opportunity to learn. AI, my God, what AI can do. Yeah. Learn customer habits, design elements. So much to do. And I would say कि अगर किसी 22 साल के लड़के को, बच्चे को या युवा को, यंग मैन को आज मालूम है, तो we should just kill it. मतलब सब ये स्किल्स जितने हैं न्यू एज के, इन सब को एक एक करके पिकअप करो, अपनी स्किल सेट में ऐड करो एंड गो अहेड. वर्क ऑन दिस फॉर नेक्स्ट 5-6 years, देन थिंक ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस तो हो ही जाएगा. ये स्किल सेट अभी हम कैसे अडेप्ट कर लें, इन सब को कैसे लर्न कर लें, to go there where you can go very fast. Any final advice you have for entrepreneurs who are starting their journey and have no background in business? So first of all, bring clarity in yourself, be sure about this you want to do. ये सबसे पहले क्लैरिटी और श्योरिटी आप ले आते हैं लाइफ में, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज विथ यू. नाउ वर्किंग ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस.
those skill set, those kind of team, those kind of consultants, and then that kind of experience. तो बस आप एक्सपीरियंस लीजिए जो रिक्वायर्ड है, 3, 4, 5, 6, 7, 10 years. Don't be in a hurry. Life is good, life is interesting. जर्नी पार्ट इज इंटरेस्टिंग. डेस्टिनेशन तो आ ही जाएगा, जर्नी को एंजॉय करिए. तो एक्सपीरियंस बहुत लीजिए अच्छे से, लर्निंग अच्छे से करिए, एंड देन न्यू थिंग्स में हमेशा सीखने की कोशिश करें. So always have a learning mindset. Yes. Always focus on working and giving your best, like Yes. we had And mentioned. ahead of things अगर आप सोचेंगे ना तो always will pay you in the longer run. Ahead of time सोचेंगे after 10 years ये लाइफ कैसे होने वाली है, 20 years लाइफ कैसे होने वाली है, रियल एस्टेट कैसे सेल होने वाला है, या रियल एस्टेट पे क्या बनने वाला है, उस पर हम अगर आज से काम कर लें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सबसे डिफरेंट हो सकते हैं. What do you think 10 years down the line real estate, how will it look like? It will be a interesting time. People would buy homes online, and designing a home will not be a difficult task. It is so challenging these days. People would tick options, 100 options ki, and their home will be designed and delivered in due time. And it would not be a cluttered world. It will be a very simple world. Choices will be many, but deliveries will be ekdam focused, customer oriented. Customer centricity, customer experience would be very important. Real estate will not be a product thing, it will be a service thing. So service is considered to be part of real estate. And branded housing, studio apartments, senior living, student living, real estate will have many portfolios. Lot of diversification within real estate is going to happen. And geography, I would say geography will not be a subject. अभी हमको लगता है कि real estate एक geographical subject है, but you would see कि people would invest in real estate like gold. They would invest in real estate like silver, like Bitcoin, like currency. So real estate will be like that. Sir, in your journey, what are some things जो आपने से fun के लिए किया, या फिर ताकि to ensure the fun element in your journey, so that we were talking about work life balance. तो balance के लिए क्या क्या चीज़ें, are there any things that you are passionate about? So I love company of friends. तो जब भी मौका मिला I spent my time with friends, lot of time. हॉलीडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं एकदम कट ऑफ हो जाता हूँ हॉलीडे में. अच्छा. सो हॉलीडे में आई एम ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन. तो उस समय पता नहीं कैसे ऑटो शट हो जाता है सब चीज़. सो दैट एनर्जाइजेज मी अ लॉट. व्हेन आई कम बैक माय एनर्जी लेवल enhances tremendously. Mind opens up beautifully. And then I'm a family person too. So spending time with family makes me feel grounded. They always pull your leg and try to bring you back to home from your virtual world or so-called created world of life and business. So that is very interesting. These are the things, and that's it, I would say. That's nice. We've really learned so much, sir, and fun part bhi pata chala. Now just a quick fun. Now I will give you a series of questions. You have to answer as quick as you can. So what's more important, passion or market research? Passion. One word to describe your journey in real estate. Full of challenges. If not real estate, which industry would you be in? Artist. Okay. One business leader who inspires you? Ratan Tata. Luxury project in a metro or large scale project in a tier 2 city? Luxury project in metro. Early morning meetings or late night brainstorming? Early morning meetings. A book that has had the biggest impact on your business mindset? 7 Habits of Highly Effective People. Your biggest strength as a business leader? My passion and courage to face challenges. Your personal favorite project by Avinash? Maruti Lifestyle. Which is the one thing that money can't buy but you wish you had more of? Time.
A quote or mantra that you live by. If you love your job, you don't have to work for a single day. What's harder, starting a business or scaling it? Starting a business. If you could give one piece of advice to your younger self, what would it be? Business is not the life. Business is part of life. No. Well, sir, that concludes our quick fun. Thank you so much. It was so great hosting you. We've learned so much, right from ideation to scaling a business. We've really learned a lot from your journey. And I hope that someone out there who is trying to start a business or even has a business but wants to scale it learns from you. So Thank you, Ashwin. It was nice interacting with you. I'm highly impressed by this 22-year-old Ashwin. You're 22, I believe. yeah. So impressed to see your knowledge and your thirst of learning. And my all the best wishes, world's best wishes to you. Have a great year ahead and a wonderful journey as an entrepreneur. Yeah. All the best. Thank you, sir.